उम्र कितनी है आपकी? 500 प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिए अभी तक। You are selling the most expensive thing in the world. एक आदमी अगर 10 करोड़ की गाड़ी भी खरीदता है तो 100 करोड़ का घर खरीदता होगा। हाँ, हमारे पास एजेंसी है, वो कर रही है मार्केटिंग। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और हम लोग उसका एक माइक्रो कैंपेन बना रहे हैं। What is the role of offers according to you in this real estate industry? हमको खाली बड़ा अपना नाम दिखाना है, बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केट और परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये टू। आपको ऐसा क्या लगता है कि फर्स्ट चॉइस बनाने में मार्केटिंग का क्या रोल है? हम बहुत बार फेल करते हैं कैंपेन्स में। ऐसा नहीं कि हमारा हर कैंपेन सुपर सक्सेसफुल होगा ही। व्यू पॉइंट का क्या रोल है आपके हिसाब से? What has been your biggest learning? I think real estate is such a dynamic and intensive industry. कि प्रोडक्ट सही नहीं बना और आपको बोल दिया गया मार्केटिंग करो। The core problem, the number one problem is you have to understand that marketing comes before sales. What is the role of a marketing agency to go into detailing to make actually the sales velocity go skyrocket? ये मेरे ही बंदे हैं, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So welcome to the Build Legacy show where we help real estate developers to build their legacies. So today I feel super excited to have a very dear friend named Vibhor Singhania from Calcutta, and I would be super happy to welcome him because he's not just an agency, but I would call him, he is himself is a legacy. He's helped more than hundreds of developers to successfully launch more than 500 plus projects, and yes, real estate projects, not just scattered across any industry, but specifically working very deeply, intensely with real estate developers for tens of years. So definitely this podcast is going to be a lots and lots of marketing nuggets. So just stay excited, have a look at the entire podcast, and you're going to have lots of learnings. So before I begin, Vibhor bhai, I want to ask you, यार उम्र कितनी है आपकी? 500 प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिए अभी तक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि it's amazing, it's a big number. Yeah. So I'm 23 years in this industry overall of advertising and creative marketing. And in these last 23 years, I have catered to a lot of developers, as you mentioned, and kind of I have launched 500 real estate projects across 10 states of India. Correct. So we have been catering to all their services, right from the strategizing the marketing launch to the nomenclature to the brochures to the outdoor campaigns, and successfully ensuring that the launch becomes successful and their sales becomes as per their target. That's our role. Wow. Yeah. Wow. Thank That's you. so amazing to Thank hear. you, thank you. And according to you, आपको क्या लगता है, मतलब ओवरऑल जो राइट मार्केटिंग है, क्योंकि जब मैं डेवलपर से बात करता हूँ तो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर एक बड़ी थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन उनके माइंड्स में मुझे दिखती है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? So I have two perspectives in this, Ankur bhai. First of all, the biggest challenge is most of the developers don't, I think they don't categorically differentiate between marketing and sales. उनका सेल्स का बंदा ही मार्केटिंग कर रहा होता है, मार्केटिंग का बंदा ही सेल्स कर रहा होता है। जनरली this is the scenario, at least when it comes to tier B cities. Yes. tier A cities में, metro cities में फिर भी ये distinction है। But I think there is a limitation. एक limitation ये है कि developer himself doesn't give much of a time to both these departments and functions simultaneously. तो होता क्या है कि अब suppose marketing ने अपना काम कर दिया, so the output of a marketing department is generally an input of a sales department. Correct. This correlation and interrelation is generally ignored by the developer because दोनों एक साथ नहीं बैठते हैं, बहुत इंडिविजुअल मीटिंग्स होती है। Correct. तो मार्केटिंग से एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि तुम लीड ला दो। करेक्ट। एंड उसका जो ब्रिज होता है दैट इज प्री सेल्स जनरली। करेक्ट। एंड फिर सेल्स वाले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको एक ओवरसी किया जाता है। करेक्ट। बट सी अगर ये तीनों चीज को एक साथ नहीं देखते हैं ना, होलिस्टिकली भी देखते हैं, यू डोंट कम टू द कोर प्रॉब्लम और द कोर idea that which one worked well. So if you ask me, I think my suggestion to any of the developers will be that आपका एक co-related meeting हमेशा होना चाहिए. You should have a dedicated marketing team. You should have a dedicated pre-sales team and a sales team. And इनकी meetings एक साथ होनी चाहिए. Wow. So that you know. Silos में ना हो मतलब. Silos में ना हो. Correct. Yeah.
सो दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि तीनों का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन नहीं होता, और उसका मेन रूट कॉज क्या है? अगेन एज आई सेड यू, द अवेयरनेस एंड द नीड. सो अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊँ ना, सी आई टेल यू, आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ डेवलपर्स पर से, जहाँ पर as I mentioned, there is no separate department called marketing, because the developer feels that वो तो sales वाला ही कर लेगा. So the problem is that the core problem, the number one problem is you have to understand that marketing comes before sales. Wow. And marketing के बिना आप sales नहीं कर पाओगे. And when I say marketing, इसका मतलब ये भी नहीं है कि marketing डिग्री का ही एक आदमी होना पड़ेगा. आपका जो पियोन है, आपका जो दरवान है, आपका जो इंजीनियर है, he also has to do मार्केटिंग इन रियल एस्टेट, क्योंकि वो जितने बार भी एक कस्टमर को फेस करता है उतनी बार यू आर क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस विच इवेंचुअली लीड्स टू ट्रस्ट. एंड बिना ट्रस्ट के आज के दिन पे आपका कंज्यूमर नहीं माल खरीदेगा. आपका कंज्यूमर, आपका जो कस्टमर है, वो अपनी पूरे जिंदगी की जमा पूंजी आप पे लगा रहा है. अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूएबल that experience is, and that one decision is, I mean, Yeah, like, yeah. अगर वो एक decision उसका गलत हो गया तो I mean he will always regret for the rest of his life. yes. So हम लोग बहुत बार हम क्लाइंट को भी बोलते हैं कि सर आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड टेक प्राइड कि इन टू थिंग्स. वन, कि आप लोगों की ड्रीम्स को पूरा करते हैं बाई कन्वर्टिंग दैट ड्रीम इनटू अ होम. बट सबसे बड़ी चीज़ है सर कि यू आर सेलिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड. घर से ज्यादा महंगा उस कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं होता. करेक्ट. एक आदमी अगर 10 करोड़ की गाड़ी भी खरीदता है तो 100 करोड़ का घर खरीदता होगा. करेक्ट. तो सिमिलरली अगर कोई ऑल्टो भी कर रहा है तो उसका घर का जो कीमत होगा ना उस ऑल्टो से ज्यादा होगा. करेक्ट. सो जनरली अ डेवलपर शुड टेक प्राइड दैट यू आर डीलिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और सर्विस of the world for that particular consumer. Correct. And once you get into that zone, then you have to understand how important that trust, how important marketing में experience कितना important काम करता है. Correct. So since I am also from a marketing background, I've had multiple calls with real estate developers when I meet. So often I hear from them कि हमने एजेंसी हायर कर तो रखी है, तो आपके पास भी डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस आती होंगी. हाँ, हमारे पास एजेंसी है, वो कर रही है मार्केटिंग, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो दैट अगेन वही एक मिथ है. सी कोई भी एजेंसी हो, चाहे हमारी हो या कोई भी एजेंसी हो, एवरी एजेंसी हैज देयर ओन रोल. एक एजेंसी एक आउटसाइडर है एंड वो आपके साथ एक पार्टनर की तरह बिहेव कर लेगी, बट देयर रोल इज टू मे बी टू स्ट्रैटेजाइज, मे बी टू डू सम क्रिएटिव्स. बट आपकी एक इंटरनल मार्केटिंग टीम होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केटिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज. मार्केटिंग इज समथिंग जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एवरीडे प्रोसेस है. वो एक्सपीरियंस कभी भी एक एजेंसी नहीं कर पाएगी ऑन द ग्राउंड, वो मार्केटिंग टीम ही कर पाएगी. वो ही एकमात्र काम कर सकती है जो वो क्रिएटिव, वो सोल्यूशन, वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करके सेल्स को सपोर्ट कर पाए. तो ये उनका काम होता है. इट इज नॉट the role of a agency. Agency can support or strategize for you. It can give you creatives. End of the day, that marketing team has to go and execute that. Beautiful. So that means आज आपने बहुत क्लैरिटी के साथ इसको चॉक आउट किया है कि हर एक स्टेक होल्डर का एक डिफरेंट रोल है. तो दैट मीन्स अगर हम इसको और डीप में जाएं, सो दैट मुझे लगता है डेवलपर को बहुत वैल्यू मिलने वाली है बिगोर भाई इस पॉडकास्ट से. तो एजेंसी के रोल्स क्या क्या हैं, देन उसके बाद मार्केटिंग टीम के रोल्स क्या क्या हैं, प्री सेल्स के क्या क्या हैं, और लेट्स से देन सेल्स के क्या क्या हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा लाइट डालो. अमेजिंग क्वेश्चन. तो अंकुर भाई देखो होता क्या है, सो मार्केटिंग एजेंसी का मैं पहले बात करता हूँ. तो लेट अस सी हु ऑल आर देयर इन एन एजेंसी. Yeah, that's quite deep. I mean, that's quite deep. This will give a very holistic perspective कि एक मार्केटिंग एजेंसी में होते कौन कौन लोग हैं. राइट. सो आज एक मार्केटिंग एजेंसी या एजेंसी में, क्रिएटिव एजेंसी में, सो यू हैव सम फाउंडर्स, एंड उन फाउंडर्स का जनरल बैकग्राउंड या तो मार्केटिंग होता है या तो क्रिएटिव होता है. एंड देन यू हैव अ होल बंच ऑफ क्रिएटिव पीपल, be it copywriters, be it strategists, be it art directors. Correct. And then you have servicing people. Correct. अब इन सब की फंक्शन अगर समझे, इनकी सबकी एक्सपीरियंस अगर समझते हैं हम लोग, सो दे हैव गिवन देयर लाइफ एंड देयर डे टू डे टास्क इज ओनली टू क्रिएट strategies, create artworks, create ideas, create concepts, create such ideas which can bring
a new revolution for that particular client or a different kind of sales boost for that client. Beautiful. Meet a campaign, right? तो ये उनका काम है कोर टू कोर. Correct. इनको हम बोल के ये नहीं बोल सकते कि आपके जाकर माल बेचो. Correct. Correct. अब जैसी या उतनी लीड जनरेट करो for that sake. So lead generation again now has become a part of marketing agencies nowadays. Correct. Because of advent of digital marketing. But चलो मैं बोलता हूँ lead generation भी कर दिया. Correct. So ये उनका सेट ऑफ काम है. Why? Because आपकी जो इंटरनल मार्केटिंग टीम है ना वो उतनी क्रिएटिव नहीं होती. Correct. They can brief you well. Correct. They know your project well. They might be knowing your customer well. Correct. बट इन सारे ब्रीफ कस्टमर थ्योरीज प्रोजेक्ट सबको लेके जब मार्केटिंग एजेंसी काम करती है ना वो इस लेवल पे लेके चली जाती है जो आपकी इंटरनल टीम नहीं कर पाती. आपकी इंटरनल टीम इज नॉट अ क्रिएटिव, वो आर्ट नहीं कर पाई. करेक्ट. सो अब काम क्या आता है मार्केटिंग टीम का कि आपको जब एजेंसी ने कुछ दिया है अब आप उसको प्रॉपरली प्लेस करो एट द राइट मीडिया राइट टाइम. मार्केटिंग अच्छे से बजट बनाओ. आप मार्केटिंग बजट नहीं बनाते हो, आप क्रिएटिव एजेंसी को लेट लोगे सो इट विल नॉट इवेंचुअली गिव यू रिजल्ट. सो मार्केटिंग का काम यहाँ पर आता है कि आप ब्रीफ अच्छे से करो, आप स्ट्रैटेजी को समझो, या तो स्ट्रैटेजी दो या तो समझो. करेक्ट. एंड देन वो जो मीडिया आप ले रहे हो उसको प्रॉपर जगह पर प्लेस करो सो दैट यू जेनरेट इनफ लीड. चाहे आप खुद लीड जनरेट करो, चाहे आप सीपी के थ्रू कराओ, चाहे आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू कराओ. बट इवेंचुअली योर केपीआई शुड बी in executing those ideas to generate enough leads and now give it to pre-sales. अब pre-sales का काम क्या होना चाहिए? Pre-sales का काम है ये जो lead आ गया इसको एकदम efficiently, well scripted, well trained pre-sales team होनी चाहिए जो इन leads को convert कर पाए to give it to the sales department for their site office. साइट विजिट अगर नहीं होगी तो सेल्स कहाँ से होगा? करेक्ट. अब सेल्स का देन इवेंचुअली काम है ऑब्वियसली टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एंड बिल्ड दैट ट्रस्ट. बिल्डिंग दैट ट्रस्ट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम मार्केटिंग. आप मार्केटिंग में भी कितने ट्रांसपेरेंट हो, ऑनेस्ट हो, आपकी एक्टिविटीज क्या है नहीं है, तो इट इज अ लॉन्ग डिस्कशन दैट वी कैन हैव. बट इवेंचुअली ये सारे लीड्स जब जाते हैं सेल्स का काम होता है आप एफिशिएंटली उसको कन्वर्ट करो इनटू रियल सेल्स. सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. यू नो आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि स्ट्रैटेजी का दैट मीन्स एक बहुत बड़ा रोल है फॉर एन एजेंसी. और एग्जीक्यूशन के लिए इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए यू नीड the complete back-end team of marketing also, pre-sales also, and then definitely the sales is required to convert that marketing execution into real sales. Is that what you mean? Yeah, 100%. And I would also like to add कि देखो so in real estate मार्केटिंग या क्रिएटिव में डजंट मीन ऑलवेज मीन कि एक 3D व्यू लगा दो, आप एक एलिवेशन लगा दो, एक लोगो लगा दो, प्राइस पॉइंट डाल दो, लोकेशन डाल दो तो मार्क दिख जाएगा. Why do you need an agency is that during the process of your launch and post launch you generally get stuck or there is a slag which comes in the whole sales process. True. That time the agency has to come up with creative solution. I am not saying कि aesthetically सुंदर ही दिखना पड़ेगा. मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी देता हूँ. Rather I can give you 2 case studies which might help others. Is that so अभी हम लोग एक हमारे क्लाइंट है कैलकाटा में, उनके लिए when we went for a discussion of a monthly review तो he was struggling with sales. ऐसा नहीं कि sales नहीं हो रहा था but we can see that there was a dip in the sales month on month. Correct. सो हमने कुछ नहीं किया. हमने जब कस्टमर हम लोग हमारे क्लाइंट के साथ जब हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे सो ही टोल्ड मी दैट देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लैट, अ सीरीज ऑफ फ्लैट से 2.5 BHK which was earlier a 3 BHK flat is not getting sold because the third room doesn't have any window. सो ठीक है, उसको स्टडी बना दिया, फ्लेक्सी रूम बना दिया और ऐसे ही क्या है फर्स्ट 3 फ्लोर्स भी नहीं दिख रहे थे. नाउ सी व्हाट वी डिड वाज कि इस तरह के जब हमको टाइपोलॉजीज दिखने लगे वी eventually came up with a creative strategy is that let us not do a macro campaign. पूरे प्रोजेक्ट का कैंपेन ही छोड़ दो. हमने उस रैक का पहले कम्युनिकेशन करते हैं. Wow. खाली 2.5 BHK if we target it to the parents, saying them that we are giving you one flexi room for your kids to study with a focused energy. और हम लोग उसका एक माइक्रो कैंपेन बना रहे हैं. फर्स्ट 3 फ्लोर्स के लिए we are changing the specs of the first 3 floors and making it senior citizen friendly. Wow. फ्लोरिंग चेंज कर रहे हैं, वॉशरूम को थोड़ा कर रहे हैं, पैनिक बटन लगवा रहे हैं. एंड हम जब मार्केटिंग कम्युनिकेशन करेंगे हम खाली उन्हीं के लिए कर रहे हैं.
Beautiful, very nice. राइट? तो अब हुआ क्या कि हम मैक्रो से निकल के माइक्रो में गए, लेकिन हमारे आउटडोर में क्या जा रही है, हमने सब हटा दिया. अब आउटडोर में खाली एक ही चीज है, बड़े बड़े करके ओनली द प्रोजेक्ट हो. Nice. कुछ नहीं, खाली प्रोजेक्ट का लोगो बड़ा करके. वाई? बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज इन एरिया वेयर देयर आर डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. Oh, इतने होर्डिंग्स है, हमको खाली बड़ा अपना नाम दिखाना है, बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केट और परफॉर्मेंस मार्केटिंग विल डू दैट. सो दिस इज वेयर द रोल ऑफ creative agency and creative strategies work. Absolutely, and I'm sure ये creativity हर एक project के अंदर हर एक product के अंदर भी differ करती होगी. 100%. As I was mentioning, मेरे पास और एक केस स्टडी है कि हम सिलीगुड़ी में एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे. अगेन आई वोंट से अ ग्रेट लोकेशन एंड वी वर स्ट्रगलिंग विद द सेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. Okay. महीने में एक फ्लैट बिक जाता था तो बहुत होता था. Oh. राइट? तो वन some evening I was discussing with the developer कि so he was obviously struggling and कि भैया हो नहीं रहा है, क्या करें नहीं करें and all. So suddenly something clicked that बस एक काम करते हैं, 15th अगस्त आ रहा है, एक ऑफर चला के देखते हैं. आज तक ऑफर नहीं किए हैं, 79th इंडिपेंडेंस डे है, कुछ नहीं ऑफर करते हैं, एकदम सिंपल ऑफर करते हैं कि बुकिंग अमाउंट सो बुक योर फ्लैट एट 799 स्ट्रेट. हम पहाड़ के जो लोग हैं हम उनको टारगेट करते थे. सो कैन यू इमेजिन द नंबर दैट वी अचीव? Must be 20-30 bookings in Yes. that. 22 bookings Wow. in flat 15 days. Very nice. Approximately 22 numbers. So I'm saying these are the strategies that you work. And उसके बाद जब हम अब रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, उनकी सेल्स टीम भी बोलती है या वो भी अगर सोचता है कि let us bring in another offer, now we are saying no, don't do any other offer because we cannot position ourselves as a offer centric project. So this is how And- you mitigate. And what is the role of offers according to you in this real estate industry? एकदम भी नहीं काम करता. I am personally not too much in favor of this offer centric campaigns. Sometimes it work. Your offer has to be very time sensitive. सही टाइमिंग पे सही चीज देना पड़ता है. आप मॉड्यूलर किचन का ऑफर एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट करते हो, इट नेवर वर्क्स. बट व्हेन यू आर ऑलमोस्ट नियर टू द पोजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड उस समय बोलते हो कि आप फ्लैट खरीद लो, आपका मॉड्यूलर किचन हम फ्री कर देते हैं, इट रियली वर्क्स. व्हाई? बिकॉज जिस समय खरीद रहा होता है ना फ्लैट, उसको बुकिंग अमाउंट देने का ज्यादा टेंशन होता है. उसके लिए किचन विचन तो उसको दिख रहा है ना, 3-4 साल 5 साल बाद का तो कौन सोचा है अभी. Very nice. लेकिन जब पोजेशन लेना है, रेडी टू मूव फ्लैट लेना है, अभी उसका टेंशन फर्नीचर है, Correct. फर्निशिंग है, इंटीरियर का कॉस्ट है. Correct. तो वहां पर जब आप उसको सपोर्ट करने लग जाते हो तो दैट टाइम इट वर्क्स. बट जनरली लेट अस अंडरस्टैंड कि हाइपोथेटिकली योर कस्टमर व्हेन ही वांट्स अ फ्लैट जब खरीदना है ना, वो ऑफर की वजह से नहीं है, प्राइस सेंसिटिव होता है जरूर, बट आप कितना ही ऑफर कर दो वो ऑफर उतना अल्योर नहीं करता इफ द लोकेशन, इफ द प्राइस, इफ द लाइक माइंडेड नेबर्स, the community is not something that he is convinced with. अब आप कितना ही डिस्काउंट दे दो उसको, और ज्यादा डिस्काउंट करोगे तो उसको और लगता है कि आप गरज में बेच रहे हो, कुछ तो गलत है. So I don't think so these are the two things that I always feel that maybe in my opinion that celebrity and discounts don't work very very highly and efficiently in real estate market. Yeah, It's the value. I mean, like in these times, specifically in metro cities, so there is a lot of culture. मतलब I have seen so many luxury residences coming up with big brand ambassadors and they spend crores. What's your take on that? Is it correct, or the builder could put that money in some other value, and if yes, where should it be spent? So I personally feel that if it's luxury, so let us first understand, my thumb rule is कि target audience कौन है, आपका sandbox क्या है, पहले ये समझ लेते हैं. sandbox मतलब target audience. तो target audience की मेंटालिटी में शाहरुख खान खड़ा हो गया तो मेरे को फ्लैट खरीदना है, 10 करोड़ का 5 करोड़ का फ्लैट खरीदना है, डजंट मैटर. ही इज साउंड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो 5 करोड़ का फ्लैट का रियल वैल्यू क्या है. True. सो आप अगर आज 5-6 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हो एक सेलिब्रिटी को लेके आने में, उसको लेके आने के बाद आपको उतना मीडिया में खर्चा करना पड़ता है. इफ यू सिंपली ब्रिंग दैट आउट, स्पेंड दैट इन अ चैनल पार्टनर, spend that amount efficiently in a channel partner network, give them that boost, they will sell it faster. Number 1. Number 2,
आप ये वाले का ना एडिशनल वैल्यू क्रिएट करो इन एक्सपीरियंस सेंटर, एक्सपीरियंसेस बेटर करो। आपके कस्टमर जो आपसे 5 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहते हैं, वो शाहरुख खान का या किसी सेलिब्रिटी का चेहरा देख के नहीं लेना चाहते। दे वांट टू बाय बिकॉज उनके एक्सपीरियंस सेंटर में ना उनको ये बिलीफ आ गया कि यार ये तो मेरे मन का चीज है। Correct. Right? They don't want discounts from you. I mean, want they the real value. I mean, like as you said, it's the most most expensive expect decision, करो ना, right? They are taking in their life. आप 10 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो यार, आप कैन यू एड अ बेटर स्पेसिफिकेशन Correct. इन दैट अपार्टमेंट? Correct. माइट बी वही उसके लिए वैल्यू एडिशन है। And I mean, provided you could understand their need better, and make it more their need centric, which fulfill not just their needs but even their few of their desires, which instead of spending on that brand ambassador could have been spent there. This is what you mean, right? या डेफिनेटली। तो उनकी जो नीड है, उनकी जो डिजायर है, उसको थोड़ा समझने में थोड़ा मेहनत करो। एंड अगर हमने अगेन एज आई मेंशन, आई थिंक एक्सपीरियंस सेंटर नाउअडेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रियल एस्टेट मार्केटिंग। आप वहाँ पर थोड़ा एफिशिएंट स्पेंडिंग करो, हैव बेटर टेक इन द एक्सपीरियंस सेंटर्स। आप जनरली हम वहाँ नहीं खर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड स्केल मॉडल लगा देते हैं। कैन यू मेक इट मोर हाइपर इंटरैक्टिव? कैन यू क्रिएट समथिंग जहाँ पर आप उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके एआई के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट करके, कैन यू मेक अ समरी ऑफ द कन्वर्सेशन एंड डू अ फॉलो अप मोर एफिशिएंटली? Correct. कैन यू ट्रेन योर सीआरएम टीम टू गिव दैट वैल्यू कि उनको लगना चाहिए वो कस्टमर, क्योंकि बस मैं सबसे महंगा चीज खरीद रहा हूँ या रही हूँ। Correct. वो फील तो लेके आए। एंड एज आई मेंशन्ड कि आई थिंक वी शुड नॉट इग्नोर द चैनल पार्टनर कम्युनिटी ओवरऑल। तो जनरली बहुत सारे डेवलपर्स के केस में मैं देखता हूँ कि चैनल पार्टनर्स को बहुत इग्नोर कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अगेन स्पेंडिंग ऑन अ सेलिब्रिटी, इफ यू जस्ट पुल दिस मनी आउट, गिव दिस टू दिस चैनल पार्टनर कम्युनिटी। एक इनको इज्जत मिलती है, दे वांट रेस्पेक्ट। उनको जैसे रेस्पेक्ट मिलता है, दे वर्क फॉर यू। They work for you. एंड एंड ऑफ द डे देखिए, डेवलपर के लिए चाहे मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे चैनल पार्टनर हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, एंड ऑफ द डे एनी बिजनेसमैन वांट्स सेल्स। Sales. तो सेल्स अगर आपका फास्टर हो रहा है, आपका इंटरेस्ट बच रहा है। तो महबूब भाई, जैसे over the years there has been a lot of transformation happening, AI is coming, so मार्केटिंग के अंदर ओवरऑल क्या बदलाव आया है, मुझे ये जरूर जानना है आपसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। ह्यूज। सो मैं अगर बात करूं तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एंड 23 इयर्स बैक, तो उस समय डेवलपर्स जब आते थे ना, उनको लीफलेट चाहिए होता था। अरे वाह, या जस्ट अ लीफलेट। लीफलेट चला दो, वो हो जाएगा। फ्लोर प्लान तो वो A4 में ऑफिस से प्रिंट आउट निकाल के दे यूज्ड टू शो इट टू देयर कस्टमर्स एंड से वाओ। एंड डेवलपर देमसेल्व्स, राइट? डेवलपर देमसेल्व्स, कोई wow. अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं होता था, कोई सेल्स डिपार्टमेंट नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट wow. नहीं होता था। So you're talking about 22 years back, huh? Yeah, I'm talking about 2003-4 Wow. फिर इवेंचुअली धीरे धीरे सो मैं जहाँ काम करता था, जिस एजेंसी में कैलकाटा में, आई रिमेंबर वी वर द पीपल हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रोशर व्हिच इज अ 12 पेजर ब्रोशर और 16 पेजर ब्रोशर का एक कॉन्सेप्ट लाना शुरू किया हमने। उसमें शूट करके लाना शुरू किया, ये इवेंचुअली और इवॉल्व हुआ। फिर वी स्टार्टेड बिकमिंग मोर हाइपर लोकल। पहले एवरीथिंग वाज बिकमिंग ईदर इन इंग्लिश और बंगाली। फिर हमने थोड़ा बंगाली कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा थीमेटिक बनाना शुरू किया। इवेंचुअली करते 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 आज के दिन पे नाउ यू सी द काइंड ऑफ ब्रोशर्स दैट आर मेड, लाइक एक एक ब्रोशर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के बनते हैं एंड प्रीटी हेवी, गुड, रियली वर्दी ऑफ दैट ब्रोशर। बट इट्स नॉट जस्ट ब्रोशर। नाउ अंडरस्टैंड कि आज से अगेन ओवर द पीरियड एज आई मेंशन्ड दैट पहले लोग फ्लोर प्लान को A4 में प्रिंट आउट निकाल के ही भेज देते थे। वहाँ से अब थिंग्स हैव चेंज्ड दैट you are making a marketing experience center altogether. You're spending 2-3 crore rupees in a marketing experience center. Where you are bringing in almost a big size scale model, interactive touch screens, lovely walkthroughs, and good interactive sessions, model flats, and you're ensuring that the customer feels the project to its best before buying it. करेक्ट, राइट? आज पहले के कस्टमर्स को कुछ भी पहले 3D व्यूज नहीं बनते थे। वो जो आर्किटेक्ट ने कॉन्सेप्ट बना दिया फोटोशॉप में वही दिखा के माल भेज देते थे। नाउ यू आर इन्वेस्टिंग सो हेवीली इन
creating those VRs, bringing in all those AI-based experiences, a lot of things coming in. Now see, I tell you the biggest change that has happened is that पहले consumer or the end customer was more transactional. वो रुपया देता था, फ्लैट लेता था. Now the transformation is that they have become from transactional to aspirational. उनके लिए अब घर एक एस्पिरेशन है and they want to vet it out in terms of its clubbing, its lifestyle, landscaping, specification, हर चीज को वेट आउट करते हैं कि उनकी एस्पिरेशंस को मैच करता है कि नहीं, यहाँ तक कि that location is a pride address or not. ये सब पहले नहीं होता था. So now things are becoming more serious. पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा लेती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा लेती है. स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड अ लॉट. सो जब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट लेवल पे आ जाता है, योर मार्केटिंग लेवल आल्सो हैज टू चेंज. Absolutely. And I think I can personally also see कि experience centers में इतना पैसा लग रहा है, and that brings me to a question in my mind: isn't marketing an expensive affair? I mean, need क्या है इतना expense करने की? See, first of all, in my opinion, marketing is definitely not an expense; it's an investment. And again, it also brings to the point that ये भी बहुत बार डिबेट होता है. Most of the developers treat it और इनको लाइन आइटम में डाल देते हैं एज एन एक्सपेंस, which ठीक है, अकाउंटिंग वाइज आप डाल दो, बट टेक्निकली आप समझो दैट इट इज एन इन्वेस्टमेंट. वाई? बिकॉज दिस इज द एक्सपेंस दैट ड्राइव्स डायरेक्ट सेल्स. आपकी यही चीज एक मात्र है जो आपकी सेल्स को बहुत बूस्ट और ड्राइव करती है. बट इट इज नॉट ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट. आपको व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये प्रोजेक्ट का अगर मार्केटिंग अच्छे से होता है, उनको नेक्स्ट जमीन भी मिल जाती है. करेक्ट. दिस मूवमेंट ये बहुत सारे डेवलपर्स अब समझने लगे हैं. That is why you will see nowadays people investing so heavily in digital media and outdoor media and paper ad. Paper ad खैर कम होने लग गया, but people have invested in medias only with a very clear brief to us कि ये project तो हम बेच ही देंगे, आप इसलिए कीजिए ताकि मेरा brand awareness better हो. And why do they do so? Because they want landowners to come and do JVs with them. Oh, that's a big secret. Yes. Very nice. And this is fair. I think this is how branding should be. So additionally, again coming to that marketing agency का role, so I think we also play that role nowadays. When we discuss with them, we keep in mind that हम branding को उस level तक ही बात करें जहाँ पर कि उस शहर के अगर कोई बाकी किसी के पास बड़ा ज़मीन हो या ज़मीन है to do JV, they should consider my client as a first choice. That is also one of the objectives. In fact, you know, where you ended as first choice, what's the role of marketing according to you? You think, मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि first choice बनाने में marketing का क्या रोल है? Equal to what an architect or a landscape does. Almost equal. See, definitely एक जो है इसमें मतलब there is no denial कि अगर आपके product और planning में ही अगर नहीं दम है तो मार्केटिंग चाहे कितना ही कर लीजिए, फर्स्ट चॉइस तो आप नहीं बन पाएंगे इवेंचुअली. ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि प्रोडक्ट सही नहीं बना और आपको बोल दिया गया मार्केटिंग करो? Yeah, so I won't say one or two. There have been many cases across the country where we always felt that the location was not right. मिसफिट है प्रोडक्ट, मिसफिट है. हाँ, Kind of. मिसफिट है, चाहे लोकेशन खराब हो. Location. मैं सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पर आई थिंक द बिगेस्ट फेलियर इन प्लानिंग इज दैट आप साइज ही इतना अटपटा कर देते हो कि टिकट साइज इतना बढ़ जाता है. आज सिलीगुड़ी से शहर में आपने 2200 स्क्वायर फीट 2300 स्क्वायर फीट का 3 BHK रखा है जिससे उसका टिकट प्राइस 2 करोड़ प्लस हो गया. मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ नंबर्स. डजंट वर्क इन अ सिटी लाइक जहाँ पर एंड यू हैव 500 यूनिट्स. So understand that product in itself is such a big misfit because आपका टारगेट ऑडियंस ही नहीं है उतना वो शहर में. इट्स अ 3 लाख 3.5 लाख 5 लाख पॉपुलेशन का शहर है. थोड़ा बहुत पहाड़ वाड़ को लेके 5 लाख बोल रहा हूँ मैं. कितना माल बेच दोगे आप? प्लस देयर आर सो मेनी अदर इन्वेंटरीज इन द मार्केट. योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज सो ह्यूज. तो वहाँ पर डेफिनेटली आई फील दैट हम कितना ही अच्छा मार्केटिंग कर ले, वी हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. And so again, as I was saying, that the product planning is the first and the most important thing to have a better experience. Wow.
And have you helped any developer, to do a better product planning? Yeah, many a times. So How come? So how come is that I would say that there are many developers nowadays जिनके संग हमारा रिलेशन आज पिछले 10-12 सालों से है, वो हमें ना जिस दिन जमीन खरीदते हैं उसी दिन दिखा देते हैं. Wow. So we involve ourselves right at that level. जब जमीन खरीदा जा रहा है, तब आर्किटेक्ट का जब प्लानिंग आता है तब हम इन्वॉल्व होते हैं, जब लैंडस्केप का प्लानिंग होता है तब इन्वॉल्व होते हैं. देयर हैव बीन मेनी केसेस बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस दैट हमने बहुत सारे डेवलपर्स को हमारे प्रेफर्ड लैंडस्केप के भी एंटर करवाया है. Wow. Yes, sir, I think this is the theme that we should go ahead with. This landscape guy can do justice to it. आप इसको करो, and they have readily agreed to it. So, see, Ankur, I think now I would like to say that it is very important for any consultant or an agency to understand that आप vendor मत बनो. Wow. आप अगर पार्टनर बन जाते हो, if you are really caring for the developer, for their profit and growth, वो आपको छोड़ेंगे नहीं. He will be there with you. Correct. And genuinely देखिए यही हमारा पर्पस भी होना चाहिए. So अगर मैं बी द बी का पर्पस आज इस पॉडकास्ट में मेंशन भी करूं, so our purpose is to ensure that all the stakeholders of B the B, be it customers, be it clients, be it our employees, be it our vendors, they all grow by our efforts. 100%. Whether we do some positive change in their organization or not, that's separate. Beautiful. I mean, it's so well said, and it's a great viewpoint in itself. मतलब मेरे लिए बड़ा एक expanded viewpoint है to understand कि marketing does not just starts from creating a brochure No, not or just creating a campaign. Not at all. And the way you've put it, that you involve yourself, or even the developer themselves involve themselves जब वो जमीन खरीदते हैं. मतलब वो अपने आप में एक मेरे लिए नया पर्सपेक्टिव है कि जमीन खरीदने के पॉइंट से ही कैसे मार्केटिंग का एक कोहेसिव इंटीग्रेशन होना जरूरी है. दिस इज अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव फॉर मैं मी. आपको छोटा सा केस स्टडी देता हूँ. सो अभी लास्ट वीक में आई वाज देयर इन जमशेदपुर फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट. सो ऑन माय वे बैक आई वाज लीविंग जमशेदपुर एट अराउंड 4ish 5ish. I got a call from one of my clients who is coming up with a hotel in कोलाघाट बोल के एक जगह है in Bengal. तो उनका कॉल आया कि विभोर वो जमीन देखने चलना है, कब जाएंगे, संडे फ्री है क्या? हम बोला सर अभी तो बिजी हैं, थोड़ा ट्रैवल लेवल है. फिर मैंने पूछा कहाँ पर है जमीन, कौन सा जमीन है? तो बोला कोलाघाट. तो हम बोला सर हम जमशेदपुर से जा रहे हैं तो आज ही देखते हैं. तो वी सॉ दैट जमीन रात को 11 बजे. एंड इमेजिन करो वो जमीन उस दिन खरीदा था. द पर्पस ऑफ शोइंग इट टू मी एंड कंसल्टिंग विथ मी कि अब इसमें आर्किटेक्ट किसको रखें. वाओ. सो दैट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट. क्यों? क्योंकि आज से 12-15 साल पहले हमने उनके लिए एक रिजॉर्ट जब किया था, जब वो कर रहे थे किसी के साथ, हमने कुछ वैल्यू एडिशंस किया जिसके वजह से वो रिजॉर्ट आज भी सुपर सक्सेसफुल है. सो अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग हियर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंसल्टेंट और एन एजेंसी दैट आप अपने कैपेसिटी में कितने अच्छी गिवर माइंडसेट के साथ उस क्लाइंट के लिए वैल्यू एडिशन करते हो. वरना आप सोचो वो क्लाइंट रात को 11 बजे मेरे लिए 12 बजे वो वेट कर रहा है जमीन पे कि ठीक है आज के देख लेते हैं, एंड आई हैव अपॉइंटेड एन आर्किटेक्ट फॉर दैट. Very nice. So here, I would like to say something, or rather ask something. Ki there's all for a right output, there has to be a right input. Correct. Now, to understand what is the right product fit for that particular project, how do you get that input from the customer? Because ये एक बहुत बड़ा मैं गैप देखता हूँ. बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, राइट, तो एक कहीं ना कहीं एजम्पशन होती है एक डेवलपर की, सेल्स वालों की, कहीं ना कहीं, है ना. एजेंसी को एक ब्रीफिंग दे दी जाती है कि इस टाइप का प्रोडक्ट है, यही चलेगा, आप इसके हिसाब से ब्रांडिंग कर दो. तो हाउ डू यू टेक दिस होल problem? Is it a right problem or not? I would like to validate that rather. Pertinent problem जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था, एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर 2200-2300 स्क्वायर फीट का 3 BHK बना दिया गया है. दैट इज देखते हैं और प्रॉब्लम समझते हैं कि दैट इन माय ओपिनियन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट बी इट अ क्लाइंट और द क्लाइंट्स टीम और द आर्किटेक्ट आल्सो, दे डोंट डू अ मार्केट रिसर्च. कि वे कंपटीशन रिसर्च कर ले. कस्टमर से कोई बात नहीं कर रहा है ना. अल्टीमेटली आपको जिसको बेचना है आप उन्हीं से नहीं बात कर रहे हो कि उनकी नीड क्या है.
Correct. आप अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो कि कस्टमर को 3 BHK 2200 स्क्वायर फीट चाहिए। Correct. आप समझो तो सही कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। Correct. So 99%, 90% केस में बता रहा हूँ, बिफोर प्लानिंग दे डोंट इवन नो who is the target audience they are planning for, Wow. right? And when you ask, So they are means unclear. They are unclear. Unclear. Wow. सबको बेचना है, जो खरीद ले खरीद ले। जो खरीदना खरीद ले। खरीद ले। ठीक है, so this is That's the- amazing. So it's meant that developer की गलती नहीं है. Let us understand. They were supposed to make buildings. They Correct. were not supposed to do this job. Correct. This is the job of a marketing agency or the marketing team. That Correct. is why a marketing team is required also. Correct. Right? They should do all this analysis. But coming to your question is that, so generally see, this is not our role. ये lucky है कि because we have been doing so many projects कि लोग हमें इतना जल्दी inculcate कर देते हैं इन projects. But that it is not a job of a agency to suggest the right product fit. Correct. Ideally. But there have been some instances जहाँ पर हमने एक हल्का सा कंपटीशन रिसर्च करके एक रफ एक्सेल शीट बना के दिखा दिया कि सर आपके अगल बगल में 10 प्रोजेक्ट है, आपके जो अगल बगल में 10 प्रोजेक्ट है उनमें से यू लाइक दिस प्रोजेक्ट हैज दिस साइजेस, ये प्राइस पॉइंट में कर रहा है, ये गैप है, मार्केट में डिमांड लग रहा है, कैन वी गो अहेड विद दिस। तो उसके अगल बगल में थोड़ा वो उनको हेल्प कर देता है। बट अगर किसी डेवलपर के पास ये डिपार्टमेंट, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जनरली ये रिसर्च उनको करके मिल जाता है। Beautiful. दैट्स अ रोल ऑफ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मींस मार्केटिंग का एक अपना रोल है और मार्केट रिसर्च का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल होना है। ही पड़ेगा। आप बिना कंपटीशन रिसर्च के यू आर एक्चुअली आप अपने लिए यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर यू माइट फॉल, एंड व्हेन यू फॉल यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट बिकॉज आपका तो कंस्ट्रक्शन हो गया, तोड़ के नया नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। करेक्ट आप वो तो छोड़ दो, आप सैंक्शन किया हुआ प्लान को रीसैंक्शन में डालने में आप कतराते हो। करेक्ट जनरली गो अहेड विद दैट एस्पिरेशन कि मैं बेच दूंगा, बट मार्केट डजंट एक्सेप्ट दैट प्रोडक्ट। तो बहुत हाईली एस्पिरेशनल बनाना अच्छी बात है, बट यू शुड टेस्ट द वाटर, यू शुड एटलीस्ट स्पीक टू द कस्टमर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज आई मेंशन्ड इज दैट द कस्टमर से बात नहीं करता। सो दैट मींस यू व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली इज कि जो इनपुट कस्टमर से है वो एग्जैक्टली आउटपुट में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कस्टमर के साथ डेवलपर भी टच में नहीं है और डेवलपर को डायरेक्टली फीडबैक वो नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए, विच इज फाइनली बिकमिंग एन इनपुट टू क्रिएट अ बेटर प्रोडक्ट फॉर देम। मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ कि सोचो एक हेल्दी डेवलपर विथ अ गुड डेवलपर इनसाइट, पढ़े लिखे, इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अच्छी खासी साइज है। अब उसके प्रोसेस में समझो, उनका ऑफिस होगा समवेयर सेंटर ऑफ द सिटी, उनका साइट होगा वहां से 20 किलोमीटर दूर। कस्टमर आता है साइट पे, डील करता है सेल्स वाला, देयर इज जीरो कनेक्शन बिटवीन द डेवलपर एंड द मार्केटिंग टीम, और यही दो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या जाएगा। Beautiful. Even What the an agency- irony. This is what you say, right? इवन द एजेंसी हार्डली साइट पे जाके किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट भी करता है टू अंडरस्टैंड कि भाई जो तुमने कम्युनिकेट किया था, तुमने जो ऐड चलवाया है, इज इट रियली इफेक्टिव और नॉट, इज इट दैट व्हाट द कस्टमर Is looking at. for? Exactly. Yes. So this is where we also have added in our agency culture is that our team goes to the site Very time nice. and again. They listen to the conversations of the customer. If required, they interact with them also to understand their perspective. They understand from the sales team and pre-sales team कि आपको क्या problem face हो रही है. I tell you, we get lovely insights from pre-sales team. जब Yeah. हमारी performance marketing की report हम देखते हैं कि conversion ratio has gone down below 6%, right? या below 10%, below 15%. So we always feel कि यार इसका core कौन बताएगा हमें? तो डेवलपर अपना एक इंसाइट दे देता है, उनका जनरल इंसाइट रहता है कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। और मार्केटिंग वाले अपने हिसाब से बोलते और हैं कंपटीशन का भी सेल कमी है। हाँ कंपटीशन का भी, मार्केट खराब है, फलाना ठिकाना जो भी है। बट सबसे अच्छा इंसाइट जो देता है ना वो है प्री-सेल्स। Pre-sales team. Correct. I totally agree. आप खाली उनकी रिकॉर्डिंग अगर सुन लोगे ना, सुइसाइडल होता है। So I have Absolutely agree. I mean, before, I have said to multiple developers many a times that have you heard your pre-sales team recording? And they said no. And we've played it together and it was like, a developer was like, oh my God. Can you मतलब imagine this? उनको शर्म आ रहा था कि यार
ये मेरे बंदे हैं, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. And you're absolutely, I mean, you're absolutely right, spot on. Yeah. So this is what I was trying to say is that how an agency's or a consultant's role is so important that we have ideally I tell you हमने कुछ पुणे में कुछ clients हैं and there are certain other clients in Eastern India also where हमने pre-sales के लिए ना script भी लिख के दिया है. I personally went to their site offices and मैं उनको train भी किया हूँ कि इस तरह से बात करना है, body language ऐसे रखना है, हाथ ऊपर नीचे, क्या करना है नहीं करना है, पहले क्या दिखाना है, बाद में क्या दिखाना है. So to this detail if you don't go, your job as an agency should not be restricted. Your job as a marketing department overall should not be restricted in just creating campaigns. That is very, very important to understand. Beautiful. So before it brings me, to a point wherein I would like to say one line that in God lies in its detail. Yes. God lies in its detail. So what is the role of a marketing agency to go into detailing to make actually the sales velocity go skyrocket? Very, very interesting question again. So देखो, what happens is मैं एक सिनेरियो समझाता हूँ आपको कि क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं ये प्रोजेक्ट है, ये प्लानिंग है, ये हमने सैंक्शन में डाल दिया, ये लैंडस्केप आने वाला है, XYZ इस स्टेज पे हमें घुसा देते हैं. सब डिटेलिंग कैसे मज़ा आता है ना कि आप जब कंपटीशन की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हो और आपको समझ में आता है ये गैप है तो हम थीम में घुस जाते हैं, हम अपने ब्रोशर कैंपेन सब बनाने लग जाते हैं. अब हम छोटी छोटी चीज़ें कैसे करते हैं कि हम टेलीकॉलर का सपोज एंडिंग लाइन कुछ एक कैंपेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं. नहीं, एकदम हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, गंदा से गंदा कि दिल से एकदम सपोज. तो नाउ द पॉइंट इज कि हम उस कैंपेन को ना टेलीकॉलर के लैंग्वेज में घुसा दिए. अब हो सकता है वो दिल से ना यहाँ पर एक कॉफी मग आएगा, वहां पर भी आ जाएगा. आपकी जो कम्युनिकेशन जो ब्रोशर है उसका हो सकता है जैकेट पे आ जाता है. तो पॉइंट इज दिल से वर्ड हैज कम ओनली बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड शायद ये वर्ड, शायद ये सेंटेंस इज ऑल्सो अ नीड और अ डिजायर ऑफ योर कस्टमर. अब आप जैसे इन डिटेलिंग को अपनी कैंपेन में, अपने ब्रोशर पे, अपनी कोलैटरल्स में, अपने वेबसाइट में, अपनी लैंडिंग पेज में, आप अपने हर कम्युनिकेशन में, अपने रेडियो वॉक थ्रूज, हर जगह जब आप इंटीग्रेट करने लग जाते हो, सबकॉन्शियसली कस्टमर को लगता है इट्स अ फ्लॉलेस वर्क डन बाय द डेवलपर एंड देयर कम्स द ट्रस्ट. खाली हम फोर्स फिट करते रहेंगे, इट विल नेवर वर्क. करेक्ट. आपको सबकॉन्शियस लेवल पे ना वो डिटेलिंग ही काम करता है. छोटा सा छोटा, इवन अ डोर हैंडल कैन चेंज. Oh yes. एक वॉल के ऊपर एक पोस्टर कैन चेंज. दैट्स हाउ यू डिटेलिंग. पोस्टर कैन चेंज. बहुत कुछ इम्पैक्ट करता है. दिस इज हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस. Absolutely. I mean, like, I remember I was in an experience center just a couple of weeks back, and over there I just saw a complete story written in the entire sample flat. That Right. this is Mr. Kapoor, this is their daughter, this is their child, and literally those characters were being played on different rooms in their TVs also. And it was like a story being narrated to me, and it was so beautifully weaved that I got just hooked to that story. या देखो आपका ना इससे एक मेरे को याद भी आया कि सैंपल फ्लैट में पहले सैंपल फ्लैट्स होते थे बहुत रॉ. आजकल बहुत फर्निश्ड इंटीरियर मॉडर्न होने लगे. अभी द लेटेस्ट इज आई रियली लव द डिटेलिंग पार्ट ऑफ इट है कि कोई दीवार है या कोई रूम है, उसका स्पेसिफिकेशन शीट भी ना आजकल छोटा सा से बना के वहां पर पोस्टर लगा देते हैं. Correct. It is so nice कि we are talking about okay this is the pipe, this is the Correct. TMT we have used, Correct. this is the cement we have used, this is the quality of tile we are using, Correct. this is the kind of modular we will give, फलाना ढिकाना जो भी है, the size and everything, this is in detailing. Absolutely. See आपका कस्टमर आज इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि आपके सारे कंपटीशन के पास ऐसा नहीं है कि आपका कस्टमर खाली स्ट्रेट आता है आपके घर से आपके यहाँ आता है और लेके चला जाता है. True. आपकी डिटेलिंग उसकी एक्सपीरियंस बेटर करती है. Absolutely. आपकी ऑनेस्टी उसकी एक्सपीरियंस बेटर करती है. आप उसको नैग ना करो. डोंट बी टू पुशी, डोंट बी टू सेल्सी. Oh yes. राइट. तो वो आप पे ट्रस्ट करता है. इफ यू रियली वर्क ऑन द कस्टमर्स नीड्स, desires, and you start adding value in his life without being too pushy, without being too salesy,
even after roaming around of all the projects, he will come down to you because of the 100%. holistic experience that he has got. 100%. I mean, I totally buy it because somehow people love to buy but they hate to be sold. Yeah. Yes, ekdam perfect. Whenever any very person, good statement. whenever any person feels that I am being sold, or someone is will going run to be away. someone is going to get pushy, Yeah. I think that's when he starts repelling Yes. that salesperson. And I always say this, that every salesperson, even on a pre-sales level or a sales level or CRM level, whatever their level are, I think they should never be too much pushy to their customers, because in the end that impacts the whole brand value. What's your take on that? एकदम 100% और उनको इसमें ना let us understand the core problem lies in the training. Oh yes, absolutely. So चाहे डेवलपर हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या सेल्स डायरेक्टर हो, इनमें से ना कोई भी अपने कस्टमर, अपने प्री सेल्स को और सेल्स को ये प्रॉपरली गाइड ही नहीं कर रहे हैं. मोस्टली आई एम सेइंग दैट डोंट बी पुशी. उनको सेल्स चाहिए, उन्होंने टारगेट दे दिया, इंसेंटिव स्ट्रक्चर डाल दिया. करेक्ट. अब इनका काम क्या हो गया, भाई अब तो मेरे को माल बेचना है. उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो लग गए. अब आप जाओगे तो आप तो एक मुर्गी आए उनकी, उनको हलाल करना है. नहीं करेंगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा. दैट इज द, इफ दैट इज द इंटेंट, इफ दैट इज द पर्पस, देन जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट, क्योंकि उसको भी अपना रोजी रोटी कमाना है, अगर उसको ये समझाया जाए, उसको ट्रेन किया जाए दैट इफ यू डू नॉट ट्राई टू pushy in a pushy manner and you just try to add value in your customer's life, Correct. वो अपने आप तुमसे खरीद लेगा. True. Right? True that. मैं आपको ना इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. आप देखना, दो ज्वेलर का दुकान अगल बगल में ना, एक बहुत सक्सेसफुल हो रहा होता है, एक थोड़ा खराब चल रहा होता है. उसके पीछे एक रीजन ही होता है. शायद बाएं वाले में ना, जो मेनली या तो उसका दुकान जो ज्वेलर है वो खुद उस कस्टमर के साथ डील कर रहा होता है एंड वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा होता है. करेक्ट. वो कभी भी ये बोलता ही नहीं कि मैडम आप ये खरीद लो बस आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. पर राइट साइड में शायद वो दुकानदार इज टू बिजी और ही इज नॉट डीलिंग विद द कस्टमर डायरेक्टली, एंड द सेल्स पर्सन, उसको तो टारगेट बेचना है, उसको तो माल बेचना है, उसको तो अपने बॉस को दिखाना है मैंने माल बेचा है. वो पुशी करने लग जाता है. लेकिन माल इसी के यहाँ ज्यादा बिकता है बिकॉज वो लेडी को ये समझ में आया था ये तो मेरे को माल बेच नहीं रहा है, तो मेरे को ये बता रहा है कि यार ये चेन मत खरीदो, ये आपके लिए नहीं है. वो उससे सस्ता कुछ दिखा रहा है. करेक्ट. स्टार्टेड एडिंग वैल्यू. करेक्ट. समथिंग लाइक दिस. रियल एस्टेट में क्या होता है, लोग बस बेचना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ अ प्रोडक्ट मिसफिट ऑफ दैट कंज्यूमर्स टेस्ट आल्सो. Absolutely. मतलब I remember one of my friend wanted to buy a 3 BHK, correct? And he had certain specification because of his senior parents in his mind. Now that the project where we both went, we were very clear, you know, it's not the right fit. But sales वाले ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, you know, उसको बेचने के लिए, correct? Despite, you'd not believe, after 2 days, we got to know that that same developer has another project, and that product was a right fit for him. Yes. So that comes the same, you know, we are on the same statement that अगर कोई सेल्स का व्यक्ति सही तरीके से कस्टमर की नीड और डिजायर को समझे, तो आई एम श्योर, आई थिंक वही अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है. सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग ही काम आता है. करेक्ट. एज अ डेवलपर, एज अ सेल्स डायरेक्टर और अ मार्केटिंग, if you start training and aligning your team that आप माल मत बेचो, वैल्यू ऐड करो, and obviously give them that insight on how to add real value. जिस दिन आप ये करने लग जाते हो, you really become the trusted developer. I mean, like we have common mentors, right? And हमने उनसे यही सीखा है. We were always, you know, that the problem is not where it appears. Problem अगर let's say एक sales वाले व्यक्ति में है, correct? हमें दिख रहा है, बट प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है. प्रॉब्लम ट्रेनिंग में, जैसे यू नो, यू आर राइटली सेइंग द प्रॉब्लम इज नॉट इन द सेल्स व्यक्ति, द प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली इन द ट्रेनिंग, दैट वी आर नॉट रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ट्रेनिंग. एकदम परफेक्ट. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Yes. And since you have raised this point of mentors, I would really tell you that personally in my life also, so there have been a couple of mentors who have
really transformed me as a businessman first of all. Wow. It's like Mr. Rahul Jain, who is a business coach, Yes. Vern Harnish, who is the founder of EO and Scaling Up, yes. So and Akshar Yadav sir. तो इन तीनों mentors या coaches के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ ना, इन्होंने एक mindset shift किया हमारा. And mindset shift में क्या हुआ, we got lot of handy frameworks. Oh yes. And lovely concepts. Now, with this advent of these knowledge among us and we being passing on this to my team members, True. we also ensure that ये knowledge ना हम हमारे client के team को भी दें. Absolutely yes. Right? And many times it benefits so much, which is like Yes. out of syllabus for us, but for them it's such a value-driven Yes. nugget. So I tell you, one of the success mantra of B2B is 100% relationship. Wow. And it is very very strong. अब वो क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत बार फेल करते हैं कैंपेन्स में. ऐसा नहीं कि हमारा हर कैंपेन सुपर सक्सेसफुल होगा ही. Correct. हम फेलियर करते हैं, वी एक्सेप्ट इट, बट वी डू नॉट गो एंड से कि सर आपका सेल्स वाला माल नहीं बेच पा रहा है. Yeah. राइट. सो व्हाट वी डू इज कि मैं जाऊँ या मेरी टीम जाती है, उनके सेल्स के साथ बैठती है, एंड व्हाट वी फर्दर डू इज कि ये जो लर्निंग्स हमको इन मेंटर्स लोग से मिला ना, वी स्टार्ट गिविंग देम आल्सो एंड वी स्टार्ट अलाइनिंग विद. बहुत सारे फ्रेमवर्क हमने जब मिल के एक साथ इम्प्लीमेंट किया, द नेक्स्ट कैंपेन इटसेल्फ वी गॉट अ बिग पुश. So that's how if an agency and marketing department or agency and a developer starts behaving like a partner, not like a vendor and Not like a vendor. I think that's And- very important. वहाँ पर गेम चेंज होता है. अब देखो, मोमोस ऑफ द लेट अस बी प्रैक्टिकल कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ना सबसे बड़ा केपीआई होता है वो कितना एजेंसी को झाड़ सके, कितना my पीछे God. पड़ Really? या वो जनरली केपीआई है इसका. अच्छा. And I'm just saying for the sake of it, but understand that मिल के अगर सोल्यूशन खोजा जाए ना, आप बहुत अच्छा काम करोगे. सिमिलरली मैं अगर एजेंसी साइड पे भी आऊँ तो उनका भी ना बहुत डिफेंसिव मोड होता है Oh. मोस्ट ऑफ द टाइम. Yes, yes, yes. सो आप डिफेंसिव मत हो. आप जाओ क्लाइंट के सामने ऑनेस्टली बोलो, सी आई एम नॉट, यू आर नॉट अ रॉक स्टार. एवरी टाइम आपको जाके आपको सक्सेसफुल मिलेगा, आप सक्सेसफुल कैंपेन करोगे, इट इज नॉट मैंडेटरी. एक्सेप्टिंग योर फेलियर्स इज द बेस्ट थिंग. योर क्लाइंट्स अप्रिशिएट दैट. लेकिन आप क्लाइंट के साथ बैठ के जब सोल्यूशन निकाल लेते हो ना, वो और भी ज्यादा अप्रिशिएबल होता है. इसी से आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा बनता है. So, इसमें before, I remember a couple of statements of two different mentors who came at a very early stage of my life. So one statement was, don't criticize people, criticize process. या It's a very deep statement, Right. that whenever you have to criticize, just criticize the process. Because व्यक्ति गलत नहीं होता, यस, जो process सिस्टम एरर. उसके पीछे होता है वो हमने बनाया नहीं होता, या हमें कई बार अवेयरनेस नहीं होती, और जब हम उस डेप्थ में जाते हैं तो डेफिनेटली इट कम्स आउट वेरी नाइसली जब उसके ऊपर हम सही Yeah. तरीके से काम करते हैं. अग्री. And that brings me to the second statement, which is very, very deeply related to it, is you get the solution to every problem provided you don't try to find problem in the solution. Oh, lovely. Very, very nice. So this is how relationships are built, I guess. And like, Absolutely. See, मैं बहुत नक्शल में अगर बताऊँ, we are discussing more about the marketing part of it. End of the day, a developer wants marketing only because he believes कि marketing अगर अच्छे से होगा तो sales अच्छा हो जाएगा. End of the day उसका यही objective है. Correct. ठीक है. Now I have seen success with only those developers जब developer अपने आप को intricately उस marketing process में involve रखता है. Wow. That's a very, very, very profound statement, and I would like to say to every developer, involve. Yes. This is very important. So- Involve to evolve. Yes. If you want to really evolve your marketing, you have to involve. Very So rightly I said. can clearly see two types of developers. एक जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो marketing process में पूरा involved हो जाते हैं. वहाँ पर होता क्या है ना, when the developer himself is in the process of marketing, generally those developers don't come to the agency and start blaming. Yeah. And don't come and just complain. Correct. यार मैंने आपको पैसा दे दिया, रिटर्नशिप दे रहे हैं, आप कुछ करिए, ये कीजिए, वो नहीं हो रहा. They know there is a failure. They know there is a success. जब फेलियर होता है, मिल के बैठते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, and we move ahead.
and we execute it. और हम सक्सेस होते ही हैं उसके बाद, because yes. दोनों की एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव. आई नो कि व्हाट गलती क्या हुई, इट्स ओके. हम फेलियर कंसिस्टेंटली कहाँ करते हैं? जब खाली प्रॉब्लम ही बोला जाता है. डिलीवरी नहीं आ रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी टीम भी कंफ्यूज होती है, उनको भी नहीं पता वो क्यों कंप्लेन कर रहे हैं. इट इज जस्ट अ कंप्लेन, इवेंचुअली एक दिन बस्ट होता है. बट इससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, प्रोजेक्ट भी हिट होता है. अब आप एक दूसरी एजेंसी को लेके आओगे या दूसरी मार्केटिंग टीम को लेके आओगे, और फिर वही अंडरस्टैंडिंग अगेन, इट्स अ बिग, एक साल तो ऐसे ही yeah, होते हो यार. exactly. तो इससे तो बेटर है ना कि आप थोड़ा सा उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ, देखो कहाँ लीकेज आ रही है, थोड़ा उसको सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली देखो. थिंग्स रियली वर्क वेरी वेल व्हेन यू discuss. Yes, absolutely. I think again that brings me to the point that it's not just about bringing an agency and treating them as a vendor, rather shift of viewpoint to treat them as a growth partner. Yes, 100%. And we have been lucky that हम आज के दिन पे in last 13 years at B2B, we have clients who have been working with us for even 10 years now. Wow. Even 6-7 years now, which is pretty good. And we have been handling all their projects luckily. And we have been successful. ऐसा नहीं है कि and that's why we are currently handling 56 real estate projects across India. Understand that because somewhere हम खाली मैं या मेरे पार्टनर वानिदा हम लोग दोनों में नहीं, हमारी ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ टीम ऑफ 75 पीपल और हमारी ना डीएनए में है कि यार क्लाइंट्स फर्स्ट, क्लाइंट को पहले सर्व करो. रात को 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, डोंट केयर, आप सर्व करो क्लाइंट को. अगर क्लाइंट बेनिफिटेड हो रहा है तो हमको बोलना नहीं पड़ता. ऑनेस्टली आई हैव सीन मेनी अ टाइम, मैं संडे को ऐसे ही ऑफिस गया हूँ कैजुअली फॉर सम वर्क, आई सी देयर 2 people वर्किंग. मैं क्यों कर रहे हो? नहीं सर कल क्लाइंट का ना लॉन्च है, लेट अस डू इट. सो आई थिंक दिस इज अ डीएनए दैट we have, and this is what I think हमारा relationship with client goes deeper. So this Vibhor brings me to a point that what is the role of viewpoint of a developer in actually making this whole brand of his own going to the next level? मतलब viewpoint का क्या role है आपके हिसाब से? So it's a very deep question. So let me first answer it थोड़ा ऊपर लेवल पे, and then we'll go sink into it. Yeah. Because I remember, before doing all sorts of courses, training programs, like you also have done so many programs, so as I, जो viewpoint हमारा आज से probably 5 साल 10 साल पहले था वो courses करने से पहले, before it was not the same, correct? No, we were a different person altogether. Definitely not. And now we are a different person. Yes. Now, why we are doing podcast? Why are we investing our time? It is not to sell through this podcast. It is just to purely add value, correct? Giver mindset. The mindset is to just give. Yeah. It's just to add value to this whole fraternity because we share this common dot and that's why we are doing it, correct? Okay. So I want to understand and I want to make a developer understand because many a times when I sit with developer, I feel that there's a very limited viewpoint with which they are working. So एक बार इसको मैक्रो लेवल पे समझते हैं. Yes. मैक्रो लेवल पे आप एक डेवलपर की ना पेन पहले समझो. उसको ज़मीन खरीदना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से डील करना, इतने सारे कंप्लायंसेस, पैसा अरेंज करना, आर्किटेक्ट से डील करना, राइट प्लानिंग करना, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी लाना. ही इज ऑलरेडी इन दैट काइंड ऑफ मेस, राइट. उसकी व्यू पॉइंट इन मार्केटिंग इसलिए छोटी होती है, उसको लगता है कि एजेंसी को दे दो काम हो जाएगा, आउटसोर्स कर दो. आउटसोर्स बिकॉज सब कुछ आउटसोर्स कर रहे होते हैं ना. अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल लैंड खरीदने के अलावा आई थिंक वो सारी चीजें आउटसोर्स ही करते हैं, प्रोक्योरमेंट छोड़ के. हाँ, ठीक है. तो मोटा मोटी आर्किटेक्चर, लैंडस्केपिंग, एवरीथिंग ये छोड़ दो, बाकी सभी कुछ जनरली आउटसोर्स हो जाता है, व्हिच इज फेयर. तो व्यू पॉइंट पे अगर आते हैं तो व्यू पॉइंट पे क्या होता है, उनको लगता है कि मार्केटिंग एजेंसी के तो वो काम कर देगा, तो वही व्यू पॉइंट है, वही व्यू पॉइंट है, आउटसोर्स है. अब इस चक्कर में एक चीज और भी है, ये समझिए कि दे हैव नॉट इन्वेस्टेड ऑन देमसेल्फ इन नोइंग द राइट नॉलेज ऑफ मार्केटिंग आल्सो. वो फ्रेटर्निटी में बैठते हैं या दो आदमी के दोस्त के संग बैठते हैं, तो वो बोलता है ब्रोशर बना ले, वो बोलता है होर्डिंग कर ले, वो बोलता है डिजिटल मार्केटिंग कर ले, फिल्म बना ले, XYZ आज के दिन पे इन्फ्लुएंसर ट्रेंडिंग है तो इन्फ्लुएंसर कर दे, या एम्बेसडर को हायर कर लो, कुछ भी. मतलब जनरली एम्बेसडर के लिए तो नहीं आता, बट हाँ
सपोज मैं बता रहा हूँ इस Correct. तरह के कुछ अगर होते हैं, True. सो दे विल कम एंड से यार ये कर रहे हो आप, ये नहीं कर रहे हो, काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट? उनकी कोई गलती नहीं, बिकॉज इट इज नॉट देयर प्रायोरिटी। Correct. अब इस पे डीपर घुसते हैं। सी द माइक्रो लेवल इज दैट उनसे अच्छा भी कोई नहीं जानता। Deep. That's deep. उनकी व्यू पॉइंट से बेटर व्यू पॉइंट किसी और की नहीं हो सकती। उस व्यू पॉइंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का एजेंसी से अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता। और वो जो नेक्स्ट लेवल पे एजेंसी ले गई है उसको बेटर एग्जीक्यूट एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट छोड़ के कोई नहीं कर सकता। सो अगर डेवलपर, अगेन कमिंग टू दैट सेम पॉइंट, कि अगर डेवलपर अपनी इस प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करता है प्रोएक्टिवली कि आई एम अ टीम मेंबर आल्सो, नॉट जस्ट एन आउटसोर्स पार्ट ऑफ इट, ही विल हैव अ व्यू पॉइंट व्हिच इज द मोस्ट वैल्यूएबल व्यू पॉइंट। वो ग्राउंड पे खड़ा होकर सुन रहा है, वो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, उसे सब पता है, लेकिन वो ब्रीफ ही नहीं कर पा रहा है ना, बिकॉज वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। Absolutely. understand? I totally resonate and I'm able to relate with what you're saying. That there's And इसमें मैं बताता हूँ, इसमें ना it is very important for a consultant or a agency to ask the right questions to the developer to get his viewpoint also. Oh yes, absolutely. बहुत बार क्या होता है कि when things go slightly messy, चाहे वो कंसल्टेंट हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या एजेंसी हो, they don't even speak to the developer. Now if you go and ask the right question, example मेरे पास बहुत बार हुई है कि we have failed, and when we have failed, I simply go to the developer, I say because देखो हमने सब कुछ चेष्टा कर लिया, we have failed, honestly we have failed, अब आगे कैसे बढ़ना है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, so can we have a conversation? Beautiful. So generally इसमें क्या करें, वो ना तो नहीं बोलेगा ना, Obviously no, because उसका project है, पैसा लगा हुआ है, stake वो है हाँ ना बोलता है. है। Correct. And we don't sit in office, Correct. we generally go out. Out of office. आउट ऑफिस हम कॉफी शॉप में बैठे आते हैं, कोई रिजॉर्ट में चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं। Correct. बट वी गो आउट, नाउ वी हैव बिकम कैंडिड। Correct. मैं थोड़ा बोलता हूँ कि कोर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं बता देता हूँ कि सर आपकी टीम में भी ये प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ सर आपका प्रोडक्ट में मेरा हिसाब से ये प्रॉब्लम है, Correct. अब आप बताओ क्या करें। True. सो व्हेन ही स्टार्ट्स, व्हेन आई आस्क हिम द राइट क्वेश्चंस, आई कीप ऑन आस्किंग, आई कीप ऑन डिगिंग, वी कम अप विद सच ब्यूटीफुल सॉल्यूशन एंड मेनी टाइम्स वेरी स्मॉल। Oh yes. बहुत बार होता है एक छोटा सा ट्विकिंग करना होता है, True. छोटा सा चीज करना होता है, एक आदमी को इनकॉर्पोरेट करना होता है। आई टेल यू कि हमारे क्लाइंट है, हमने ना एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था इस कन्वर्सेशन में, एंड आई रिमेंबर दैट लोकेशन आल्सो, देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड पीटर कैट इन कैलकाटा, सो ही वाज इन कैलकाटा ऑन दैट डे। तो हम लोग वी वर देयर डूइंग डिनर एंड अगेन डिस्कसिंग कि कैसे ठीक करे, ये ब्रांड इमेज ठीक ही नहीं हो रहा है। You know, the core problem that we figured out, and I got to know from one of their employees, is that उनकी पेमेंट्स टाइमली नहीं हो रही थी, तो ब्रांड इमेज खराब हो रहा है, वेंडर्स आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट, एंड छोटा शहर था तो वेंडर्स आपस में ही बात कर करके ब्रांड इमेज खराब कर रहे थे। तो हमने बोला लेट अस डू वन थिंग। अच्छा, प्रॉब्लम है कि डेवलपर का इंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, द प्रोसेस बिकेम सो लॉन्ग दैट वो पेमेंट इसलिए नहीं हो रहा है, Correct. डेवलपर को पता भी नहीं कि पेमेंट इतना डिले है। Correct. Correct. तो हमने क्या किया, हमने एक डिपार्टमेंट ही क्रिएट किया कॉल्ड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसी दिन डिनर पे बैठ के, Beautiful. और उन्हीं के टीम में से एक जन को अपॉइंट करके कि कल से तेरा काम ये है। Beautiful. तो कल से करना क्या है तेरे को, 100 वेंडर है, सबको खाली फोन करके ना भाई सब ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग समथिंग अराउंड कोविड के बाद का बात कर रहा हूँ, Very nice. भाई सब ठीक है, घर पे सब ठीक है, ये है ठीक है, अच्छा तुम्हारा कोई बिल बचा है क्या बता देना, अगर बचा तो मेरे को भेजो। वो हाथों हाथ प्रिंट आउट देख के एकदम सब कुछ रेडी रखता था, सर से अप्रूवल लेता था, एंड उसको मैसेज कर देता था कि भाई ये तुम्हारा बिल प्रोसेस हो गया है, मिलेगा 35 दिन बाद। Very nice. Just but communicating. huh? कम्युनिकेट हुआ ना। Very nice. Very nice. नेक्स्ट लेवल, हमने वो वीआरएम को बोला कि तुम अब उनसे ना बर्थडे एनिवर्सरी लेना शुरू कर दो, कुछ नहीं करना, हर चीज की वो पुरानी वाली कार्ड वार्ड के टाइप का बना देते थे, वो चल रहा था। हमने एक तो वीडियो बनवा लिया डायरेक्टर्स का, एकदम जेनरिक टेम्पलेट, कोई का नाम नहीं, हाय हाउ आर यू, हैप्पी बर्थडे, समथिंग लाइक दैट, एंड वो वेंडर को भेजा, स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। Yeah. अब वो डिले इज नॉट अ प्रॉब्लम,
such a nice collaboration. Only when we started conversing, only when we asked the right question. And where you, I think, figured out the right problem. Yeah. And this brings me to a statement. There's one mentor of mine, his name is Mr. Kuldeep, and amazing soul. He taught me one statement which is very deep, very profound. I think, I'm sure this is going to help every developer. He said that, Ankur, if you remember one statement, you will never ever, get into a problem and would not stay in that problem for a long. Problem आएगी भी ना तो आप बहुत जल्दी निकल जाओगे उससे. तो मैंने कहा वो क्या है? तो he said every complex problem has a very simple solution. And it just nailed into my mind. Yeah. And whenever I get a complex problem, I say, wow, let me just sit over it now. Yeah. Let me just take out 2-3 days or 2-3 hours dedicatedly to this problem, wherein I'm going to break this problem into pieces. Yeah. Just like you take a whole piece of paper, you tear it into small pieces. Like this morning, I was sitting with my process coordinator team, EC team, and they were not clear how to solve a particular problem. We broke that whole problem into small pieces. Yeah. Yeah. And within just 2-3 hours, we were able to identify that the solution was so simple that we just need to track 2 or 3 KPIs and it just got sorted. Perfect. So that's I totally agree the power with of what you're focus saying. also. That's the power of focus, exactly. And इसी से एक मैं आपको बताता हूँ. I saw I was seeing a reel sometime back. So it was on Steve Jobs on a concept of noise versus signal ratio. Yes. Right. So जो Shark Tank का Kevin है, he was talking about it. So it's so important. देखिए, why do we go out with that developer out of that office in a coffee shop or in a resort? Only because when we were there in the office, there was a lot of noise. There was no signal. बात ही नहीं हो पा रही है ना, माहौल ही नहीं बढ़ रहा है. Correct. जैसे ही हम बाहर चले गए, agenda clear हो गया. The noise has completely gone down, and now we are just focusing on that 20% signal. Beautiful. जैसे हमने उस पे बात करना शुरू किया, we got a solution. Everyone has a solution. Absolutely. So I think that is the power of focus. So before coming again to the point that what are the KPIs according to you are very important in marketing, which needs to be tracked by the agency, then by the team, and then by the developer. Wow. So I think there are 5-6 KPIs that I always follow for most of our clients. Is number 1, total site visits. And by the way, KPI is key performance indicator. Yeah. So ऐसे क्या मोटे नंबर है जो आपको जरूर देखने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. That's what Vibhor is going to put a light on. And मैं इसमें थोड़ा सा और एंगल देता तो I also tell that it is not just a key performance indicator, it is also a kept promise indicator. Wow, very As nice. an agency, An expanded viewpoint on the same word KPI. Beautiful. Yeah. So my point is कि as a marketing agency, you have to keep your promise. Now, what are those key promises? 1, your site visit has to increase. All your social handles. So track your site visits. This is what you're saying. Yeah. So number of site visits. Correct. Number of inbound calls. How many inbound calls are you getting? तभी तो समझ में आएगा ना कि मेरा marketing campaign कितना अच्छा काम कर रहा है. Correct. Number of website traffic. Website में के भीतर कितने लोग घुस रहे हैं. 4th is your followers. In your social media engagement, not just followers, it is engagement. Correct. कितने engage कर रहे हैं? Then it is understood that your marketing content is doing good. Correct. And finally, it is the number of closures, not the value. Number of closure is very important for us. Correct. Irrespective of project size, value, whatever. हम यही कंट्रोल कर सकते हैं, right? अब क्लोजर क्या मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, बट हम फैसिलिटेट कर सकते हैं. बाकी सारे हमारे कंट्रोल में. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर इन चारों चीजों को नहीं इवैल्यूएट कर रहा है, सो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. Correct. अब आई टेल यू अ गुड केस स्टडी आल्सो. तो मैं लास्ट वीक वी सिटिंग विद वन ऑफ आवर क्लाइंट्स. मैं छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ कि जब आप हर वीक और हर मंथ इन नंबर्स को जब आप ट्रैक करते हो और डिस्कस करते हो, व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ. लास्ट जून दैट पर्टिकुलर क्लाइंट्स
cumulative site visits were 18 site visits, 18 in number last June. This June it was 72. My God, 4 times straight. Can you imagine the jump? Now what happened was, क्योंकि हम हर महीने ऑलमोस्ट हर 2 वीक में ऑलमोस्ट एवरी वीक में एक बार बात कर ही लेते थे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन खोज ही रहे होते थे. इवेंचुअली क्या हुआ, हमने राइटफुली स्पेंडिंग की, हमने बहुत सारे होर्डिंग्स हटाए, हमारी मार्केटिंग स्पेंड की वो जो कॉस्ट थी उसको हमने डिजिटल में डालना शुरू किया, हमने बहुत एफिशिएंट प्लानिंग करना शुरू किया, हमने सीपीज को लाना शुरू किया. तो वी डिड स्मॉल चेंजेस. If you know Atomic Habit में 1% 1%, yes. So we just followed that 1% theory. Small shifts. छोटे shifts. We created triggers कि जहाँ लगता था कि कोई कैंपेन काम नहीं कर रहा है, डिजिटल में परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन था for don't be bothered about optimization, पहले उसको कम करो. True. और नेक्स्ट डे ही उसका सोल्यूशन निकालो. Beautiful. So आप जैसे ये सब करने लग जाते हो, now see the result. Client gains confidence. Absolutely. I mean, there is no doubt on it that small tweaks in marketing are very needed at the right time. एकदम बहुत ज़्यादा काम आता है. So, Vibhor, I would like to ask you, what's the role of feedback in this entire space of marketing and sales? Very honestly, अगर मैं बताऊं कि there is hardly anywhere where it is a very organized way of taking feedbacks, be it marketing, be it sales, respectively. Customers is supposed to give you the feedback. Correct. So now there are so many evolved concepts like NPS, Net Promoter Score, ये जैसे concepts होते हैं जो हमने कुछ sites में जब लगाया, we got miraculous result. But the best thing that works is when the developer himself takes the feedback from the customer. जिस दिन ये होने लग जाता है ना, the magic comes. जब डेवलपर को फर्स्ट हैंड फीडबैक कस्टमर देता है कि यार वो जो स्विच का जो सही जो हाइट है ना वो थोड़ा बदलना चाहिए था, क्योंकि ये ना आपकी टीम नहीं देती है, ये पास ऑन नहीं कर पाती है, ये एनपीएस जैसे कॉन्सेप्ट्स में ये कवर नहीं होता. And why is it so? क्यों पास ऑन नहीं कर पाती? क्या रीजन है? ये चाइनीज विस्पर वाला थ्योरी है कि उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए रेलेवेंट नहीं, उनके लिए I think that's very important कि उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है because उनका वो KPI नहीं है KPI और प्लस उनकी वो डायरेक्टली सेल से जुड़ा नहीं हुआ. Right. That's how they think. Yeah, एकदम. और सी अल्टीमेटली अंडरस्टैंड दैट एक डेवलपर सच में इंटेंट अच्छा लेके ही काम करना चाहता है. मोस्ट ऑफ देम दे हैव अ गुड इंटेंट to work and deliver good quality work and project to the end consumer. Intent में ना generally कोई problem नहीं होती है. मैं 1, 2, 5, 6 को अलग कर दो, अलग बात है. But generally as a lot developers का intent बहुत अच्छा है, तो जब planning भी करते हैं, they try to give the best to the developer in terms of specs, in terms of everything. But they have their own limitation also. They are running such a big organization. They are dependent on these who's. अगर आप who not how के concept पे जाते हैं, तो he has the developer has hired these who's only so that he gets the right feedback also. Correct. But the unfortunate part is that कि वो who को पता ही नहीं है कि वो feedback किस तरह देना है. Oh wow. Intent उनकी भी गलती नहीं है, but they process those feedbacks maybe as a complaint many a times. Yeah. So इसलिए वो pass on भी नहीं करते. Pass on नहीं करते. Correct. They don't take that feedback intentionally because उनका काम हो गया, माल बेचना था, बेच दिया. तो इसलिए I think coming to your question that how important feedback is, if you ask me, my suggestion is that the developer का one of the KPI should be that you should meet X number of customers every week. Wow. As a mandatory KPI of a CEO or a developer. Wow. 100%. You will see magics coming. So that means if you would have to advise the developer, what's that one thing they should do? Would it be this? Customer के booth पे जाके बैठ. Beautiful. Just sit with the customer, speak to them, understand what they, and why do you think it's that important? ठीक क्या होता है कि आप जब प्लानिंग करते हो, आप जब इतनी सारी एजेंसीज, इतने सारे वेंडर्स, इतने सारे कंसल्टेंट्स के साथ डील करते हो, you eventually get colored. But ये सारा चीज आप कर किसके लिए रहे हो? कस्टमर के लिए. कस्टमर के लिए. और उसी से दूर हो. नहीं कर रहे हो. And irony उसी से दूर हो. Right? तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपने 6x4 की टाइल सिलेक्ट कर ली.
करेक्ट, बिकॉज क्योंकि आर्किटेक्ट ने कहा या किसी लैंडस्केप वाले ने कहा, जिसने भी बताया, और वो उससे कनेक्टेड नहीं है. right? Was have you gone and asked the customer whether the customer needs 5 swimming pools in a project? करेक्ट. Right? आपका मन हुआ, लैंडस्केप ने प्रेजेंट किया, आपने डाल दिया, एवरीथिंग गुड, फाइन, एवरीथिंग गुड. मैं जिस प्रोजेक्ट में रहता हूँ, in my society there are 5 swimming pools. One is operational. My God. So no use. Right? बट प्लानिंग के टाइम पे कितना एक्साइटमेंट हुआ होगा, 3D व्यू बना होगा, ये हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, बट अल्टीमेटली कस्टमर को वो एक ही स्विमिंग पूल चाहिए था. करेक्ट. बाकी जगह पर आपने थोड़ा और एफिशिएंट लैंडस्केपिंग कर दिया होता तो शायद वो और बेटर वैल्यू एडिशन होता. और अगर आपसे समझ लिया होता है कि आपको और क्या चाहिए, तो इट वुड हैव बीन मच मोर मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्पेस व्हिच इज जस्ट ऑफ बहुत वेस्ट. कुछ बता रहा हूँ कि आई थिंक रियल एस्टेट इज सच अ डायनामिक एंड इंटेंसिव इंडस्ट्री. अगर अगर डेवलपर अपने कस्टमर के पास जाके सच में उस इंटेंट के साथ जाके फीडबैक लेना शुरू करता है ना, उनकी प्रोडक्ट, उनकी पेमेंट प्लान, उनकी सर्विस, उनके लोग में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है. एब्सोल्युटली, आई टोटली. बिकॉज अगर एक सीनियर सिटीजन है और आपने फीडबैक लेना शुरू कर दिया उनसे, यू स्टार्ट सीइंग दैट योर पीपल विल स्टार्ट, उनकी बिहेवियर चेंज हो जाती है बिकॉज आप जाके बात किए हैं एंड आपने अपना फीडबैक दे दिया कि बस इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो, इनके संग ये कर दो, ये वैल्यू एडिशन कर दो. वैल्यू एडिशन के आपकी टीम आके फीडबैक ही नहीं देती ना, उनको डर लगता है. And I think there are classic case studies in India. Recently, for last 5-7 years, we've seen senior living concept coming into picture, and those companies who have understood their customer well, they have targeted them well, and they have. Yeah. So I will, in nutshell मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कोई भी client, कोई भी डेवलपर इफ वीकली अपने कितने कस्टमर के संग बैठना है, डिस्कस करना है, इसको अपने जॉब रोल में ले आए ना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इज इनएविटेबल. I totally agree, Vibhor, because personally in my business, I have been into that space also where I never used to meet a client, and then today when I started understanding and implementing this principle, before I even started preaching it to to the developers even, I could see a huge difference in my relationships. Yeah. Because as our mentor always says that people buy from people whom they know, like and trust. Yeah. Now that factor of not just knowing but that likability is very important. Very important. I completely agree. तो इसलिए ना ये thought कि people buy from people not from an organization, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है. And generally this is a concept which most of the marketing agency, marketing department also don't understand. Correct. देखो होता क्या है कि एज एन एजेंसी हम भी ऑब्वियसली प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन सबको बड़ा कर देते हैं, बट जो बेच रहा है ना, जो सेल्समैन है, कैन यू इमेजिन कि हमने इतना सोच समझ के एक ब्रोशर बनाया, हमने इतना सोच समझ के एक कॉन्सेप्ट बनाया, हमने इतना सोच समझ के एक कैंपेन बनाया, जब माल बेच रहा होता है ना, वो अपना ही कोई स्टोरी चला रहा होता है. Absolutely. Irrespective of all the effort that have been. अब उसमें गलती उसकी है क्या? नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती पूरे उसके पहले वाले जितने भी प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनके, बिकॉज दे हैव नेवर एवर टेकन एन एफर्ट कि एजेंसी वाले जाओ, जाके सेल्स वालों को अलाइन तो करो कि तुम्हारा क्या इनिशियल थॉट प्रोसेस था, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन लिविंग, व्हाटएवर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि नेचर बेस्ड लिविंग क्यों बोल रहे हो, व्हाट इज द रीजन टू बिलीव. आप जाके उस सेल्स वाले को तो बताओ तुम्हारा सेल्स पिच क्या है, गो एंड अलाइन देम, देन ओनली कैन दे टॉक. अदरवाइज होता क्या है, सेल्समैन वो ब्रोशर लेता है, ठक 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 खाली 3D व्यू को दिखाता है, दैट्स इट, आपका सारा एफर्ट जीरो हो जाता है. Absolutely. That brings me to a story you would not believe. As a marketing strategist, I was sitting with one of the developer. You know what? I just told him one thing, that let's just go on the floor. Yeah. Don't let the customer know that you are a developer. Become an intern to your salesperson and just sit and listen what he's saying. Believe you me, we had shocking experiences. वेरी ट्रू. तो हम लोग अभी क्या करते हैं, वी हैव नॉट डन दिस प्रोसेस, बट हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स में क्या होता है, वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. Correct.
we have started transactional recordings, and when we review that, देखो shocking तो है ही, I'm telling you it's suicidal. Yeah, it's suicidal at times. Yeah, but ठीक है, again it's learning. It's learning. And record हो जाने से फायदा ही हो जाता है कि हम उसको बार बार देख पाते हैं. So even just smallest thing like a body language can be improved. Correct. मैं आपको एक बहुत अच्छी एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ. So there was a sales executive of one of our clients in a very tier C city. आपको मैं बता रहा हूँ. Total 5 sales executives in that organization, pretty decently big organization in that city, town. Now उसका performance month on month was 0. आगे नहीं बेच पा रहा है. Very low on confidence. Body language खराब, everything. मेरा उस क्लाइंट के साथ क्या होता था, हर 2 महीने में मैं जाता ही था फिजिकली, 2 दिन रहता था वहाँ पर, बातें करना, मार्केटिंग वार्केटिंग होने के बाद मैं आधी घंटा सेल्स के साथ ही बैठता ही था, जस्ट टू गेट द पल्स. मैं ना उन पे नज़र जरूर रखता था. सो मैं बहुत बार ना उनको चला के फ़ोन करता था कि सब ठीक है क्या दादा, ये है वो है. ही यूज्ड टू कॉल मी, सर मैं यहाँ फंस गया हूँ. मैं अगेन all the learnings from the books that I have read, from the mentors that I have learned, मैंने उनको छोटी चीज़ें बताने लगा. And kind of क्यों नहीं पता नहीं, मेरे ना भीतर में I took it as a personal goal कि मैं इनको कुछ तो अच्छा कराऊं, इनके लाइफ में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. And believe me, इस बार मैं जब गया last week when I was there in that city, सेल्स टीम में ना उनका इंसेंटिव निकला था इस बार कि इस महीने में जो सबसे अच्छा करेगा उनको फोन मिलेगा. तो he came and showed me that. Wow, very nice, very nice. I was so happy. Yeah, that's heart touching always. That's I mean, when any person whom you're working very closely, he wins, you automatically feel you've won it. Now, how did I do this? When I was going through those recordings, मैं उनको लेके बैठा कि आप रिकॉर्डिंग सुनो, खुद ही देखो. आप माल बेचने का कोशिश कर रहे हैं. Yes. उसको सुनना नहीं है भाई. वो suppose that guy is a healthy guy and nowhere interested in gym, and he was trying to sell him the gym. Correct. Right? He's not able to buy it. आप उनकी wife who looks to be so conservative, आप उनको swimming pool बेच रहे हो. She's not going to go dip in that pool. Correct. Right? And आप अपनी body language देखो. आप जोर जबरदस्ती बेचने का कोशिश करो. सर आप समझिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है. इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपका लाइफ का बेस्ट प्रोजेक्ट है यार. You are trying to be pushy. Correct. The day he changed his tonality and all the result. तो रिकॉर्डिंग का ये सबसे बड़ा फायदा. And that brings me to relevance of understanding your customer deeply and then customizing your communication at the sales level. I think equally plays a very important role. What do you say on that? 100%. That is why again I say you कि training बहुत important है. Correct. अगर आप देखोगे सक्सेसफुल डेवलपर्स वही हैं जिनकी सेल्स टीम को ना रेगुलरली ट्रेन किया जा रहा है. Correct. कुछ ना कुछ चाहे वो बॉडी लैंग्वेज में हो, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्ड. लाइक सी लेट अस अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आते क्या है, जैसे ही आते हैं सर आपको कहाँ से लीड मिला, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, 3 BHK 2 BHK फलाना ठिकाना. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड फोर्ड. फोर्ड क्या है कि आप पहला 15 मिनट ना कुछ मत करो, आप खाली उनकी फैमिली, ऑक्यूपेशन, उनकी रिलेशनशिप एंड उनकी डिजायर. Wow. Ford. Ford. That's amazing. So first you said is family, occupation, recreation and desire. Very nice. आप खाली इन चारों पे ना कन्वर्सेशन कर लो. Very nice. See what happens, the magic happens कि जब हम और आप भी जब बात करते हैं ना पर्सनल लेवल पे, थोड़ी बहुत डिजायर्स पे, थोड़ी बहुत ऑक्यूपेशन के बारे में, ये सब जब थोड़ी ये बॉटलनेक्स खुलने लग जाती है, योर रिलेशनशिप इज बिल्ट. अब आप धीरे धीरे माल बेचना शुरू. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन कन्वर्सेशन, ये जो 4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ फोर्ड, इसमें एक बहुत बड़ा चीज होता है, यू गेट लॉट ऑफ हुक्स विच देयर इन योर माइंड. अब आप जब पिच कर रहे हो तो ना प्रोजेक्ट को, तो आपको पता है अच्छा आपकी माता जी तो धार्मिक है, सर हमारे पास ना मंदिर भी है, और वो आप माता जी को ही फोकस करके बता रहे हो बात. और आप आई कांटेक्ट माता जी को ले जा रहे हैं. Correct. So these are the small insights which you get from the customer, but unfortunately क्योंकि हम माल बेचने में ही लगे होते हैं, तो वो insights को कैप्चर करना पहले तो है, उसको जानना, फिर उसको कैप्चर करना लिखते हुए,
और फिर कैप्चर करके उसी राइट पर्सन को जिसको उसकी जरूरत है उसी को ही कम्युनिकेट करना, आई थिंक दिस इज व्हाट यू मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? ये फोर्ड वाला जो थ्योरी है, Beautiful, it very has nice. worked for us wonderfully. So the gentleman that I was talking about, मैंने उनको फोर्ड का थ्योरी बहुत समझाया है. मैं बोला कि मैं कस्टमर हूँ, आप उनसे बात करें. ब्यूटीफुल. सो हमने जब ये बॉटल नेक खोला, सो सी अंडरस्टैंड व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका सेल्स वाला ना, आप थ्योरेटिकली उसको कुछ भी समझा दो, ट्रू, उसको पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन पूछ. ट्रू, ट्रू. सो अब हमने इतना तक गए थे कि वी मेड लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, या आप उसको मगअप कर लो. वेरी नाइस, वेरी हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स एंड ऑल, ये सब बहुत करना पड़ता है. सो अगेन एज आई सी ना कि मार्केटिंग का काम खाली ब्रोशर्स या कैंपेन करना नहीं होता नहीं है. है. द वे वी स्टार्टेड आवर कन्वर्सेशन, नाउ दिस इज हाउ वी एंगल कि आप कैसे डीपली घुसते हो जिससे इवेंचुअली ब्रांड अवेयरनेस अच्छा हो, ट्रस्ट डेवलप हो, सेल्स अच्छा हो. And that brings me to a statement that people do not buy what they understand. People do not buy what they understand. They buy when they feel they are being understood. Yeah, 100%. They have to feel understood. Yeah. That there's someone who's actually listening, who's actually understanding me, my needs, my desires, my fears, my frustrations. And that's what you're saying. It's so spot on. I can relate with that. इसमें ना मैं बाय द वे, सॉरी इंटरप्टिंग यू, बट हम लोग ना एक और थ्योरी लगाते हैं, ये सेम जो आप टॉपिक बोल रहे हो ना. सो देयर इज अ थ्योरी ऑफ 2 मिनट थ्योरी. हम इनको बोलते हैं कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इफ यू रियली वांट दैट कनेक्शन टू बी बिल्ड, दिस अंडरस्टूड वाला फैक्टर तब आता है ना जब आप कम बोल रहे होते हो और कस्टमर ज्यादा बोल रहा होता है. Correct. यू आर इन द लिसनिंग साइड ऑफ इट. तो हमने एक थ्योरी डेवलप किया था व्हिच इज कॉल्ड अ 2 मिनट थ्योरी, कि तुम अगर 2 मिनट से ज्यादा बात कर रहे हो ना, सो यू आर लूजिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर ऑलरेडी. Correct. तुम 2 मिनट या तो क्वेश्चन पूछ लो, बात कर लो, जो भी करना है, बट लिसन मोर. ऐसा कन्वर्सेशन करो कि यू जस्ट आस्क द राइट क्वेश्चन, लेट देम स्पीक मोर, लेट देम स्पीक मोर. वो जो कनेक्शन डीपली होता है ना, वही अंडरस्टूड वाला फैक्टर है. बिकॉज अब आप उसको कुछ समझा नहीं रहे हो, दैट कस्टमर इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड Absolutely. that this is my life, this is what I love, this is what I want. Absolutely. So a successful salesman तभी सक्सेस लेता है जब वो लिसनिंग साइड में ज्यादा रहता है. लेकिन अगर आप होलिस्टिकली देखोगे, सबको लगता है salesmanship is all about talking. It is not. Just listen, ask the right question, game will change. Absolutely. I think that is what is required. I think because as the way communication is changing in every form, we all need to understand that there's so much of noise even Yeah. for the customer, and if you bombard them with more noise, they're going to get confused. And it's always said in marketing that a confused mind never buys. एंड आप जो क्वेश्चंस पूछते हो या आप जो पिच दे रहे हो ना, सारे बाकी डेवलपर्स सब वही दे रहे हैं ना. सब वही दे रहे हैं. सिंपल है ना, आप पहले फोल्ड कर लो, 2 मिनट वाला थ्योरी फॉलो कर लो, Correct. उनको थोड़ा रिलैक्स कर दो. एंड जब आदमी बोलने लग जाता है, वो उस इकोसिस्टम को ना बिलीव करने लग जाता है, वो सेटल्ड हो चुका है, अब वो आपकी बात सुनना चाहता है. वरना वो भी तो भरा हुआ है ना, उसको उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, यार मेरा सारा जिंदगी का जमा पूंजी मैं निकालने वाला हूँ, ये जो सामने बंदा हो रहा है तो मेरे को बेचना चाह रहा है, नहीं यार ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं. अब उसी में तुम उसको है चुपचाप कर दियो, तुम कुछ बोले जा रहे हो. उसका प्रोसेस कितना साफ हुआ, यू नो, उसका जो माइंड है वो प्रोसेस कहाँ कर रहा है, ना की तरफ ज्यादा प्रोसेस हो रहा है. Correct. लेकिन जैसे ही वो ज्यादा बोलने लग जाता है, यार मेरा ना बहुत दिन से मन था, मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ ना, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है. अब ही स्टार्टिंग टू इमोट. वो जैसे जितना ज्यादा बोलने लग गया, यू आर इन द लिसनिंग साइड ऑफ इट, वो सडनली आपको अंडरस्टैंड कर रहा है. योर कनेक्शन हैज बीन बिल्ड बिकॉज ही इज शेयरिंग हिज प्रॉब्लम विथ यू. And that I want to connect the dot to another dot of again an intention. That if we change the intention from selling to adding value to the life of your customer, that brings transformation. What's your take on it? 100%, 101%, and that should be then. अगर आप देखोगे तो हमने बहुत बार ये वाले इस टॉपिक पे भी बात की कि एक सेल्समैनशिप का सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि आप एक गिवर माइंडसेट के साथ एक कस्टमर के साथ बैठे हो. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, कस्टमर फील्स इट.
Understand? yes. देखो, when we say that a person buys from a person only ना, कि आज एग्जाम्पल एक डेवलपर XYZ डेवलपर है, कस्टमर गया, वो XYZ से नहीं खरीद रहा है, आपको जो सेल्समैन मिस्टर ए हैं उन्हीं से खरीद रहा है, राइट? ऑब्वियसली द ब्रांड इज दिस, द प्रोडक्ट इज दिस एंड एवरीथिंग, बट एनर्जी ट्रांसमिशन कहाँ हो रही है बिटवीन दीज टू पर्सन? करेक्ट. अब अगर इन दोनों की एनर्जी में अगर कहीं पर भी इंटेंट में प्रॉब्लम है, ट्रू. चाहे वो कस्टमर का हो चाहे वो सेलर का हो, इंटेंट में अगर गड़बड़ है वो एनर्जी ट्रांसमिशन ही गलत नहीं हो होगी. रही है. इट्स ऑल अबाउट साइंस ओनली, True. नथिंग टू डू विद. हमें बहुत जन को बहुत कुछ लगता है कि हम 30 मार्क का हैं, सेलर को भी लगता है कि यार हम तो अभी जस्ट सेल इट बॉस, आई एम अ चैंपियन, एंड द बायर एट आल्सो टाइम्स कि हमको तो सब पता है, आई नो एवरीथिंग एंड आई एम अ चैंपियन. जब ये अहंकार आ जाती है, जब ये वाली चीजें आने लग जाती है ना, सेल्स डजंट है. इंटेंट अच्छी है, गिवर माइंडसेट है, सामने वाले को लेने का भी इंटेंट अच्छा है, घर सच में खरीदना है, देने वाले को भी घर सच में वैल्यू ऐड करना है, चेंज हो ही जाएगा. वैल्यू क्या ऐड करना है वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम पता है एक और चीज होता है, मार्केटिंग वाले को पूछोगा ना वैल्यू एडिशन करना, वो डिस्काउंट बोलता है. सेल्स वाले को बोल दो डिस्काउंट का बात करता है. डिस्काउंटिंग इज नॉट वैल्यू एडिशन. Absolutely. I mean, I was about to come to this कि प्राइस कम कर दो, that's the biggest value addition. No, not at all a value addition. Oh. प्राइस सेम है, आपने उस प्राइस पे कितनी वैल्यू की, that is value addition. Understand, इस वर्ड में कितना पावर है ना. Correct. 100 रुपए की चीज है, आपने उसको 90 कर दी, वैल्यू कहाँ, आपने तो वैल्यू घटा दी. Correct. 100 रुपए की चीज 100 रुपए में है, आपने उसको 20 रुपए की चीज उसी के ऊपर दे दी 100 रुपए में. Correct. You have added value to it. Beautiful. आप लेट अस अंडरस्टैंड, आप एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो, आप करते हो वो 1000 रुपए का ही, परपेक्सिलिटी का आपको 17,000 रुपए का वैल्यू एडिशन फ्री में मिल रहा है. Correct. दैट्स वैल्यू एडिशन. That's value addition. हॉटस्टार का मेंबरशिप फ्री में दे दिया उसको, वो वैल्यू एडिशन हुआ. आप घर खरीद रहे हो, घर में आपने बोला घर का मैं पेंट फ्री में कर दूंगा, दैट्स वैल्यू एडिशन. आपने 100 रुपए 200 रुपए स्क्वायर फीट कम कर दिया, दैट्स डिवैल्यू. Or probably 2 years work from home facility from a studio which is there within your society. या एंड बहुत कुछ हो सकता है. हमने एक बार एक वैल्यू एडिशन किया था क्लाइंट के लिए, सुपर सक्सेसफुल हुआ था. 10 इयर्स मेंटेनेंस फ्री. Wow. कैन यू इमेजिन, एक आदमी घर खरीदता है, उसका सबसे बड़ा बॉटलनेक भी Bottleneck भी मेंटेनेंस होता maintenance है. है. बाय द वे बैक ऑफ द माइंड बहुत चलता रहता है. Correct. It's a हमने noise. 10 साल का मेंटेनेंस फ्री कर दिया. देयर वाज लॉट ऑफ कैलकुलेशन. सुपर सक्सेसफुल. Correct. We sold record numbers of the flat in that period of time, and again product misfit था. Product misfit क्यों था? 3 BHK का साइज बड़ा, 26 स्क्वायर फीट. So Vibhor, if I ask you, after doing hundreds and thousands of campaigns, what has been your biggest learning? So I think my biggest learning as a marketeer is that I should know my customer very well. My client's customer in that case. See, बहुत बार ना एक चैलेंज होती है कि हम ना when we are working on the campaign or a communication of a project, हम डीप नहीं घुसना चाहते, being very honest. और हम ऊपर ऊपर जब करते हैं ना, उसकी रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं आती. Absolutely. बट जब हम एक कस्टमर को बहुत डीपली स्टडी करने लग जाते हैं, हम उनके साइट पे चले जाते हैं, उनके कस्टमर से बात करते हैं, हम एग्जैक्ट पर्सोना क्रिएट कर लेते हैं, अब जो हम कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल. Absolutely. तो नोइंग अ क्लाइंट्स कस्टमर is my biggest learning. Second, I think in this world where now AI and things have come in, I think TAT is very important. Speed. That आपका turn around time आज से 2 साल पहले जो था अब नहीं हो सकता. Your speed has to be super quick. Your customers can't wait. Absolutely. आप मैंने बेसिक से बेसिक चीज बता रहा हूँ कि इंडिया जीत गया है. And if you are not celebrating, if you are not a part of that celebration, you're thinking you will post 2 days later, it won't matter. Anyways, your customer is least bothered about it. कि आपने पोस्ट किया कि नहीं किया. But आप 2 दिन बात कर रहे हो, it irrespectively it doesn't make sense. Makes sense.
So similarly, timing of your campaigns, timing of your offers if you are giving, timing of your value addition, everything matters only when you really know your customers persona, customers mindset, customers intent. आप अगर उनकी कल्चरल वैल्यूज को नहीं जानते हो, आपने श्राद्ध के टाइम पे, मलमास के टाइम पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, पिटेगा ही. आपको ये समझना तो पड़ेगा, ये एथनिसिटी आपको समझना ही पड़ेगा. Correct. Absolutely. Absolutely. I truly get that, and that brings me to another question to you, which is the market medium message. It's always said in marketing that your market, your medium, your message, they all three have to be in synchronization. Yeah, it's a triangle. Where has been a successful implementation of this 3M triangle where you got massive success and a massive failure as well? I would like you to put a light on it. See, मैं ऐसे I will not name particularly, but yeah, see, success तो हो ही जाते हैं, because as an marketeer and in 23 years, generally ये हमारे से फ्लॉ नहीं हो सकता कि हम मार्केट मीडिया मैसेज में कुछ गलती करेंगे. I would say 95-96% times we are pretty good, bang on with all these things. Rather, I would say I would be talking more on failure side of it. कि there have been cases जब suppose मैं example बताता हूँ, एक हमने कमर्शियल बिल्डिंग के लिए लॉन्च किया एंड मेरी बिगेस्ट फेलियर क्या हो गई कि हमने उसको ना रिटेल की तरह लॉन्च कर दिया, while the composition of the project had more office spaces. फिर हमने जब रिवर्क भी किया और एक गलती क्या की, हमने उसको इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बना दिया, while ऑफिसेस थी छोटी छोटी, 300 स्क्वायर फीट की, 200 स्क्वायर फीट की, एंड एंड यूजर्स को बेचना था. There was no idea, there was no need of investment oriented. So what happened was कि ये मिस्टेक हमने 2 बार की तो हमारा 4 महीना निकल गया. Correct. तो 4 महीने का ना हमारा लॉस हो गया ऑन द सेल्स प्रोसीजर. बट जैसे ही हमने ये रियलाइज किया, ऑब्वियसली डेवलपर आल्सो हेल्प्ड मी इन दैट कन्वर्सेशन, वी हैड अ टर्न अराउंड. सो मार्केट हमने गलत क्या किया, हमने मैसेज गलत कर दिया. एंड मीडियम में भी गलती सबसे बड़ी क्या की, रिटेल ओरिएंटेड हम होर्डिंग में जा रहे हैं. भाई प्रोजेक्ट बन रहा है, रिटेल में तुमको जो फ्रेंचाइजी ओनर हो तो उसको करना, वो कौन सा होर्डिंग देख खरीदेगा. You have to reach out to the CPs efficiently. Correct. So that was the problem. Correct. So these kind of things, I think failure is more important to be discussed in this particular idea, because I think most of the people ये 3 triangle में खराब नहीं होते हैं. In market, medium and message, generally खराब नहीं होते. Very nice. So what's the one thing you would like the developer to shift in themselves? So I think developer and their marketing and sales team में सबके लिए एक बहुत strong advice करूँगा, and that is manifestation. Wow. So manifestation is a very strong mindset, which I feel most of not only developer, मैं developer करता नहीं बोलूँगा, पर उनकी टीम में ना manifestation बहुत गड़बड़ चल रही होती है. So देखो, अगर आप जो चीज़ बेचना चाहते हो, जिस चीज़ को आप ही ने कंसीव किया है, आपको अगर उसमें बिलीव ही नहीं है, तो आप सामने वाले को तो आप जब when you are not convinced yourself, आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करोगे? True. So again, if I tell you, मेरा पर्सनल मिशन रहता है कि मैं ना उन पर्टिकुलर आदमी लोगों को ना पकड़ के उनका ना मैनिफेस्ट वैलिड कर रहा हूँ. I tell them this concept of manifestation. I ensure that I gift them this book called Magic by Rhonda Byrne, जहाँ ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा बेटर करो. True. सीक्रेट मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो रोंडा बाइन्स का एक किताब है सीक्रेट, हम वो पढ़ने बोलते हैं. एंड देखिए, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस कि लोग ना एटलीस्ट मेरी बात मान लेते हैं. हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पर वो रेस्पेक्ट लेवल हो जाता है हमारा, आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस दैट वी हैव गैदर्ड, दैट पीपल लिसन टू यू एंड ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है 5-6 महीने में, जब उसको ना पर्सनल लेवल पे वो रिजल्ट मिलने लगता है. So the question was, what is that one thing that हम shift करना चाहते हैं generally? See, we are not, I would not say कि मैं ना, I have that authority to change anything in a developer. Again, I say you, I have high respect for this fraternity overall because of the kind of pain they go through in running a business, right? Yes. And the kind of different kind of pains.
from government policies to everything. But still मैं खाली एक ही चीज बोलता हूँ सर, मैनिफेस्टेशन ठीक करते हैं. Correct. वो होता है ना कि रैंडम मीटिंग में पास कर देंगे कि यार ये कैंपेन तो काम ही नहीं करेगा, अरे नहीं वो तो ऐसा ही है. नहीं भाई यार, मार्केट खराब है. कौन बोला मार्केट खराब है? Correct. Correct. तुम्हारा मार्केट शेयर ही इतना छोटा है यार, तुम क्या मार्केट खराब करोगे यार? True. 100 रुपए का मार्केट है, तुम्हारा मार्केट साइज 1 रुपया है. Correct. 99 बचा हुआ है. मार्केट कितना ही छोटा हो जाए, तुम एक का दो तो कर, तुम्हारा तो कंपनी ऐसे ही बदल जाएगा. True. Absolutely correct. अंडरस्टैंड? वहाँ मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम है ना. Absolutely. And I think again that transference of the belief, a strong belief from the developer or someone's from his side, the management, to the again team, that transference of conviction is very important. I feel. Yes. एंड ना मैं इसी से आपको एक चीज बोलता हूँ. मेरे को वॉरेन हार्निश का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है. He many a times tell that CEO is not chief executive officer. A CEO is a chief energy officer. Wow. So as a owner, आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आप अपनी बिलीफ को कितना पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करके एनर्जी के साथ अपनी टीम के सामने लेके आ रहे हो. दैट्स द गेम चेंजर. अगर आपने अपनी टीम के सामने आप ही नेगेटिव हो, आप ही बोल रहे हो ये नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा. Absolutely. आप बिलीव ही कर रहे हो कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा. अगर आपकी बिलीफ ऐसे नहीं हो तो हटा दो. True. अगर आपको ये बिलीफ ही है कि भाई ये प्रोसेस से काम नहीं होगा तो नहीं होगा. हम बहुत 100%. बार ये फिगर आउट करते हैं कि हमारे कैंपेन्स एक्चुअली काम नहीं करते बिकॉज आवर मैनिफेस्टेशन वाज रॉन्ग. Yeah. Absolutely. Yeah, so I think one of the things that I would definitely want to change is this mindset of belief. Fantastic. So it was such a great, lovely conversation. I think we can go like for whole day, whole night. Thank you. The way this conversation in such a candid way, not even planned, Yeah. just flowing like water. Yeah. I'm just loving it. But yes, definitely we need to put a stop over this, and I'm sure that every person who's going to listen, whether he's from sales, pre-sales, marketing, from a developer real estate fraternity, is going to get a lot of nuggets. And I really felt very happy the way you have explained, especially Ford, 2-minute theory, manifestation, the power of value, the power of intention, what the developer has to do, what is the role of all the important factors which a developer must consider, what kind of teams, what is the role of planning, what's the integration of marketing right at the planning stage. Oh my god, I'm still feeling that there's so much to learn and absorb, and I'm sure that even I'm going to revisit this whole conversation again to make more deeper level of notes and understand and share this again wisdom with lots of developers. Thank you once again so much I'm so happy, Ankur, that first of all, thank you for inviting for this My pleasure. podcast, and I was revisiting today morning also कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी. So I very well remember that आपका एक किताब था Sell Grow Sell Grow Fast. तो on my way to a trip to Bangalore, I was reading the book and it was a thin book, तो मैं वो फ्लाइट में पढ़ के ख़त्म कर दिया. But the content was so powerful that it was manifesting in my mind कि मेरे को अंकुर होरा से मिलना है बॉस. ये इनसे मिल लिया तो मेरा लाइफ तो चेंज हो जाएगा. Kind of scenario, and the manifestation was so powerful that मैं उसी दिन शाम को आपसे बैंगलोर एयरपोर्ट पे मिला हूँ. Absolutely. Can you imagine? And I was like stunned. मैंने कहा ये Yeah. पीछे से कौन, और वो आपने जब बोला मैंने वो बुक पढ़ ली है, I was like wow, this is true manifestation. And can you imagine the power of that manifestation? कि today I'm sitting here with in your podcast. I'm so happy, Ankur, that you invited me and we had My this pleasure, brother. chat. My I pleasure. hope our viewers get good value addition from all the wisdom that we have. Absolutely. So thank you once again, brother. And we look forward to have again and again more conversations, Definitely. healthy conversations, value-driven conversations with you, where you bring more experience, more power, more energy, Sure. and let's take this entire real estate fraternity to the next level together. Thank you. Thank you. Thank you.